Hello, let us start. Hello. नेस्टेड फॉर लूप झालंय का? हॅलो. अमृता डोयफोडे, प्रणाली, कोमल, सुरेखा, ऋतुजा, ओंकार, नागेश, अर्जुन, गणेश जगदाळे, ओम जगदाळे. झाले का? नेस्टेड फॉर लूप झालंय का? यस. येस सर. हा, पॅटर्नचा प्रोग्राम घेत होतो आपण. समजलं का पॅटर्नचे प्रोग्राम्स? येस सर. पिरामिडचं घेतलंय का? नाही. ठीक आहे. पिरामिड म्हणजे पिरामिड डिस्प्ले करायचा. त्रिकोणाच्या त्या पिरामिड सारख्या शेप मध्ये सगळे स्टार दाखवायचे. घेतलंय का तो प्रोग्राम? हॅलो. नाही. A C program to display following pattern on the output screen. 1 2 3 4 5. पहिल्यांदा 1 स्टार आणि 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, 5 stars. Number of stars were increasing row wise. काय अडचण? Here to display pyramid on the output screen, first of all you will have to think about this kind of pattern आहे. हा सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला मिळायला पाहिजे. हा मिळाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये पण एक एक ब्लँक स्पेस पाहिजे मध्ये. विचार करा. Yes. And if you will have such kind of pattern with you, if such kind of pattern you will be able to display on the output screen, then it is very easy for us to display a pyramid on the output screen. ह्याच पॅटर्नला काय केलं जातं तिकडे, पहिल्या स्टारच्या आधी आहे ना 5 ब्लँक स्पेसेस जर सोडले मी, तसं थोडंसं मला वाटतं तुमच्या इकडे एक हिंदी किंवा इंग्लिश बोलायचं आहे, बरोबर? So for first row, whatever first star is appearing here, and before this we can reserve 5 blank spaces, 1 2 3 4 5, and number of blank spaces we can decrease row wise. So in first row we are putting 5 blank spaces. In second row we are reserving 4 blank spaces, 1 2 3 4, and in third row we are reserving 3 blank spaces, 1 2 3. In fourth row we are reserving 2 blank spaces, 1 2, and in last row we are reserving only 1 blank space, and we will get pyramid kind of pattern on the output screen. Yes. Hello. बरोबर? रिस्पॉन्स द्या. हॅलो. येस. हाय का कोण पलीकडे? मला वाटतं कोण नाही आहे ना. माझं मी घेऊन टाकतो. वेळ वाया घालवत काय अर्थ नाही. कोण हाय का पलीकडे कोण नाही का पलीकडे, काय भाय.
So hash include stdio.h to with this we can include header file, standard input header, standard input output header file, hash include conio.h void main opening curly bracket closing curly bracket clr ser to clear the previous output screen, get ch to hold the output screen. Before clr ser and get ch we can write our code. Before clr ser we can declare our variables. I will be declaring two variables, I, j, and I for number of rows, j for number of columns. I is looping variable for outer for loop, j is looping variable for inner for loop. So let us use for loop, nested for loop. In this for loop, one more for loop we are writing, that is inner for loop. After completion of inner for loop, before completing outer for loop, let us write printf \n. This statement will help us to display an new row to the new line. Therefore this we will have to write after completion of inner for loop and before completing outer for loop. Let us initialize I is equal to 1, I is less than or equal to 5. Why 5? Because we have 5 rows. We are trying to display a pyramid for 5 rows. Therefore we are starting with 1 and we are ending at 5. So value of I we will increase from 1 to 5. Therefore I is equal to 1, I is less than or equal to 5. Let us increase value of I from 1 to 5 each time by 1. Therefore I will write I plus plus. Yes? Hello? J is equal to Yes, 1. sir. J is less than or equal to, here I will write I, because first of all we wanted to display what kind of pattern विचार करा. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला असा पॅटर्न दाखवायचा आहे 1 2 3 4 5 आणि प्रत्येक स्टारच्या मध्ये 1 ब्लँक स्पेस. And once we will be able to display such kind of pattern on the output screen, then it is very easy for us to display pyramid. We can convert it. See here. Now, number of stars are totally depend on the number of rows. In first row, we need only 1 star. In second row, we need 2 stars. It means when we are displaying stars in the second row, as value of I is 2, so value of j also we wanted to increase from 1 to 2. Therefore, logical condition we have written j is less than or equal to I. It means we will be displaying a number of stars, okay, and it is dependent on number of rows. Therefore j is equal to 1. We are starting with 1. J is less than or equal to I. Let us increase value of j from 1 to I. Therefore here I can write j plus plus. This is updation of looping variable 2. And here we can write printf, and in double quote we can mention star. And let us save this file. Let us execute. What kind of output we'll be getting on the output screen, let us check it. असं काहीतरी पॅटर्न भेटेल. Yes? Hello? Yes, sir. आता प्रत्येक स्टारच्या मध्ये एक ब्लँक स्पेस पाहिजे. जर ब्लँक स्पेस असेल, when we will be giving blank space between two stars, then only we will be able to convert that pattern into pyramid kind of pattern. So to give that one blank space, either you can use blank space before star, or you can use blank space after star. कहाँ पे भी एक blank space दे दो है ना, it will work. Okay? Hello. Yes, sir. Now this pattern we got, and once this pattern we are getting, now only we will have to think before this first star we will have to give 5 blank spaces. जितने हमारे पास number of rows है, accordingly अगर हमारे पास 6 rows है तो 6 blank spaces छोड़ना पड़ेगा, तब जाके pyramid मिलेगा. Similarly here we are considering this pattern for 5 rows, and as we are considering pattern for 5 rows, so 5 blank spaces we will have to reserve for first star and in the first row. 1 2 3 4. Then in the second row we will have to decrease number of stars. In first row 5 blank spaces we given before first star. In second row we will have to decrease 1 blank space. 5 के जगह पे 4 blank spaces छोड़ना पड़ेगा. 1 2 3 4. चुकलं काहीतरी आहे. 1 2 1 2 3 4. इथे किती सोडले बघा. 1 2 3 4 5. Yes? Hello. So to put blank spaces before the row, one more for loop I am using.
and for that for loop I will be using looping variable as k. तो k नाम का लूपिंग वेरिएबल यूज किया है और यहाँ पे वो रो जो है हमारा डिस्प्ले होता है, ठीक है, ये जो रोज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है. इनर फॉर लूप विल हेल्प अस टू डिस्प्ले एंटायर रो कॉलम वाइज एक्चुअली. एंड बिफोर दिस इफ आई विल यूज फॉर लूप, के वाला फॉर लूप, तो यहाँ पे लिखेंगे के इज इक्वल टू फाइव. वाई फाइव? बिकॉज 5 से लेके आई का वैल्यू जो है वो 1 है ना. 5 से लेके 1 तक हम जा सकते हैं. 5 से लेके एक्चुअली 1 तक नहीं जाना है हमको. 5 से लेके हमको आई तक जाना है, इसलिए आई विल बी राइटिंग के इज इक्वल टू 5. के बड़ा है ना आई से, देयरफॉर के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई शुड नॉट सपोज टू राइट 1. इफ आई विल राइट 1, सो एवरी टाइम this for loop will be executed 5 times. We don't want to execute, okay, for we don't want to give an 5 blank spaces. जर असं केलं इकडे 5 पासून 1 पर्यंत जायसाठी, सॉरी, I will have to decrease value of k, and if I will give an 1 blank space, so it will reserve an each time 5 blank spaces. each time 5 blank spaces. विचार करा, अख्खच्या अख्ख पुढे सरकला तो पॅटर्न 5 ब्लँक स्पेसेसने. आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्या रो मध्ये 5 ब्लँक स्पेसेस, दुसऱ्या रो मध्ये 4, तिसऱ्या रो मध्ये 3. येस, हॅलो. Yes, sir. Therefore, instead of writing k is equal to 5 to I we will have to write not 1. मग पहिल्या रो मध्ये काय होणार, व्हॅल्यू ऑफ I will be 1. 1 is less than or equal to 5. Logical condition remains true. Value of k will be considered as 5. 5 is greater than or equal to value of I is 1. So 5 से लेके 1 तक this printf function machine will execute for 5 times, and therefore 5 blank spaces will be reserved and before first star in the first row. Yes, hello, hello. Yes, sir. And when our cursor will go to new line, it means in second row value of I will become 2. 2 is less than or equal to 5. Logical condition remains true for outer for loop second time. Again यहाँ पे आएगा वो k का वैल्यू 5 रहेगा. फिर से 5 is greater than or equal to I का वैल्यू for second iteration it will be 2. तो 5 से लेके 2 तक मोजा तिकडे आहे ना. 5 4 3 2 किती झाले, 5 5 4 3 2 किती झाले, 4. Yes, so it will reserve 4 blank spaces. 4 blank spaces will be reserved when value of I will be 2, and when value of I is 2 we are in second row. Yes, hello. Yes, sir. विचार करा है ना. विचार केला तरी येणार आहे ना प्रोग्रामिंग, अदरवाइज इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. समजलं का, काय अडचण? If you have doubt you can ask, otherwise we can go to next. Hello. ही जी फॉर लूप लिहिलेली आहे ही कशासाठी लिहिली आहे हो? Why we have written this for loop of k, and where k looping variable we used? Because we wanted to display blank spaces before stars. Yes, Yes, sir. and this for loop is helping us to display stars. Okay, this printf function is helping us to display a new row to the new line. Yes, hello, समजलं का? Hello, yes. Yes, sir. See here, now whatever program we have written, it is for 5 number of rows. 5 रो साठी लिहिलेला हा प्रोग्राम आहे. जर समजा मला तिकडे नंबर ऑफ रोज ह्या कस्टमर कडून इनपुट द्यायचे असतील, if I wanted to enter value of row through keyboard, then I can use one more variable, say r, and value of r we can enter through keyboard and printf. So we are writing now generalized program for number of rows, where number of rows will be entered by the customer or client, and a client or customer will be entering number of rows. So here we can write please enter number of rows. So how we can enter number of rows through keyboard? Scanf function will help us to enter value of r through keyboard, ampersand r. Now r ka value means actually we should not supposed to write specific program. We will have to consider our pyramid for number of rows.
therefore I is less than or equal to 5. 5 लिहिलता आपण तर 5 रो साठी येत होतं आहे ना. Now instead of 5 I will write R. It means our pyramid will become okay generalized for number of rows, where number of rows will be entered through keyboard. येतं का लक्षात काय होणार आता? हॅलो, समजा मी 10 लिहिलं तर काय होणार? 10 रो साठीचा पिरामिड दाखवला जाणार. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for your yes, and after a long time and I got some one confident kind of yes. Thank you very much. And थोडस बोलत जावा की तिकडे आहे ना, मुख्यपणाने असलं शिकणं कसलं बघा हे, बर का? नाहीतर लेक्चर अटेंड नाही करायचं तिकडे आहे, यायचंच नाही, नुसतं येऊन इकडे ऐकत बसण्यात काय अर्थ इकडे आहे. यू विल हॅव टू थिंक अ लॉट what I am saying. You will have to understand it. If you are not getting, you will have to stop me, and once again I can explain. This is actual learning. And कसं व्हायचं काय व्हायचं बघा. So whatever program we have written where number of rows we are entering, if I will enter 20, so we'll get okay pyramid of pyramid, same kind of pattern, pyramid kind of pattern for 20 rows. 20 रो के लिए हमको वो पिरामिड दिखाएगा. यस. हेलो. Yes, sir. Okay, sir. तो पिरामिड कैसे डिस्प्ले करने का है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस. Yes, sir. अभी सपोज हमको उल्टा पिरामिड चाहिए. उल्टा मतलब ये ऐसा है, ये इसको पिरामिड बोलेंगे. इन्वर्टेड पिरामिड बोले तो नीचे उसका आएगा क्या, जो अपेक्स है, इसको अपेक्स कहते हैं, बराबर. अपेक्स ऊपर वाला पार्ट. यस. ये हमको इन्वर्टेड करने का है, मतलब उल्टा पिरामिड हमको इन्वर्टेड पिरामिड आई वांटेड टू डिस्प्ले ऑन द आउटपुट स्क्रीन. सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल बी देयर, है ना. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेव एज एंड 101.c. सो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सब कुछ निकाल देंगे. देखो है, यस. हेलो. सबसे पहले है ना, उल्टा पिरामिड चाहिए तो कैसा पैटर्न चाहिए. 1 2 3 4 5. सोचो है ना, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. यस. और इसके हर एक स्टार के बीच में एक ब्लैंक स्पेस चाहिए. वो ब्लैंक स्पेस जरूरी है, अदरवाइज पिरामिड दिखेगा नहीं वो. ठीक है. So such kind of pattern, if you will be able to display on the output screen, then it is very easy to convert such kind of pattern into pyramid, inverted pyramid. वो कैसे होगा देखो, इसको हम कॉपी करके इसको ऐसा ही रखेंगे. कंट्रोल इंसर्ट कॉपी है ना, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट. क्या करना पड़ेगा. हेलो. लास्ट टाइम का जो लॉजिक था उसमें नंबर ऑफ जो ब्लैंक स्पेसेस थे वो 5 से लेके 1 तक हमने डिक्रीज करे. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा. हेलो. Increase, sir. हाँ, Increase करना पड़ेगा. इंक्रीज करना पड़ेगा. पहला रो है, पहला रो अगर रहेगा तो उसमें एक ही ब्लैंक स्पेस छोड़ो. दूसरा रो है तो कितना छोड़ना पड़ेगा. अगर पहले रो में एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है तो दूसरे रो में हमको 2 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ना पड़ेगा. तीसरे रो में 3 ब्लैंक स्पेसेस. चौथे रो में 4 ब्लैंक स्पेसेस. पांचवे रो में 5 ब्लैंक स्पेसेस. यस. Yes, sir. And Yes, we will sir. get okay, we will get our inverted pyramid. So first of all, let us try to think and such kind of pattern how we can display it on the output screen. For any pattern kind of program we will have to use 2 looping variables. So integer type of variables I am using I and j. For loop use करेंगे. कितने रो है कितने कॉलम है वो देखो है. 5 रो के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनर फॉर लूप बिफोर कंप्लीटिंग आउटर फॉर लूप लेट अस राइट printf backslash n. This statement will help us to display okay new row to the new line. Therefore we have mentioned printf backslash n after completion of inner for loop and before completing outer for loop. अभी ये जो outer for loop है वो number of rows के लिए रहता है. inner for loop जो है number of columns के लिए रहता है. So I जो है I is equal to 1, I is less than or equal to 5. Let us increase value of I from 1 to 5 each time by 1. Therefore I plus plus. ये 5 ही क्यों लिखा है, बिकॉज हमारा जो पैटर्न है वो हम 5 के लिए कंसीडर कर रहे हैं. यस. 5 रोज के लिए कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5. यस. हेलो. हाँ सर. अभी सोचना पड़ेगा
यहाँ पे पहला जो रो है, फर्स्ट रो, मतलब i का वैल्यू जब 1 रहेगा तब हमको जो j वाला फॉर लूप है, इनर फॉर लूप, वो हमको कितनी बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? 5 टाइम्स। यस, यस सर। यस सर। 5 बार हमको इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हमको कैसे कंडीशन लिखना पड़ेगा? सो हाउ आई एम राइटिंग, यू कैन थिंक व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। i is equal to 5, sorry, j is equal to 5, j is greater than or equal to I, j का वैल्यू लेट अस इंक्रीज ईच टाइम बाय 1, j माइनस माइनस। और यहाँ पे हमको एक स्टार दिखाना, एक स्टार दिखाएंगे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के, ठीक है ऐसा। तो अभी सोचो है, i का वैल्यू फॉर फर्स्ट इटरेशन, वैल्यू ऑफ i विल बी 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडीशन रिमेंस ट्रू, j इज इक्वल टू 5, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। 5 से लेके 1 तक j का वैल्यू यू हैव टू डिक्रीज, देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट इटरेशन के लिए i का वैल्यू 1 रहता है तब ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। यस, 5 से लेके 1 तक i का वैल्यू 1 है, 5 से लेके 1 तक पहला 5 रहेगा, j का वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडीशन ट्रू रहेगा, फर्स्ट स्टार फर्स्ट रो में डिस्प्ले होगा, यहां से यहां जाएगा, j का वैल्यू 1 से डिक्रीज होगा, 4 से 5 से 4 होगा, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i का वैल्यू अभी भी 1 है, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू है। सेकेंड टाइम प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले होके एक ही रो में वो स्टार दिखाएगा, यहां से वो j का वैल्यू डिक्रीज होगा यहाँ जाने के बाद, ठीक है। j का वैल्यू जो 4 था वो 3 होगा, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू अगेन फॉर थर्ड टाइम। सो थर्ड रो, फर्स्ट रो में ही थर्ड स्टार डिस्प्ले करेगा वो, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, j का वैल्यू 2 होगा, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू, फिर स्टार डिस्प्ले होगा, वो फोर्थ रहेगा शायद, यहां से यहां जाएगा, j का वैल्यू 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू, फिफ्थ स्टार डिस्प्ले करेगा वो, यहां से यहां जाएगा, j का वैल्यू जो है वो 0 होगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडीशन फॉल्स होगा, इनर फॉर लूप का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप होगा। मतलब जब i का वैल्यू 1 रहता है तब जाके इनर फॉर लूप जो है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है फर्स्ट इटरेशन के लिए। यस, पहला रो के लिए। हेलो, यस सर। यस सर। और इसके बाद यहाँ पे जाएगा, जैसे ही प्रिंटफ बैकस्लैश n ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट रो पे जाएगा, है ना, और यहाँ से वो आगे जाएगा i का वैल्यू बढ़ाने के लिए, i का वैल्यू 2 होगा, इट मींस वी आर इन सेकेंड रो, j का वैल्यू फिर से 5, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i का वैल्यू नाउ 2, 5 से लेके 2 तक j का वैल्यू ईच टाइम वी आर डिक्रीजिंग बाय 1, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, ये जो फॉर लूप है सेकंड इटरेशन के लिए है, i का वैल्यू जब 2 रहता है तब वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 5 से लेके 2 तक, i का वैल्यू 2 है, सेकंड 4 इटरेशन बार सर। 4 बार एग्जीक्यूट होगा, और 4 स्टार्स जो है वो सेकंड रो में दिखाई देंगे। फिर से लॉजिकल कंडीशन फॉल्स होगा, बैकस्लैश n की वजह से थर्ड रो में जाएगा, i का वैल्यू 3 होगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडीशन फॉर आउटर फॉर लूप रिमेन्स ट्रू, अगेन यहाँ पे जाएगा, j का वैल्यू फिर से 5 लेगा, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i का वैल्यू अभी 3 है, 5 से लेके 3 तक है, ईच टाइम वी आर डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ j बाय 1, 5 4 3, 3 बार एग्जीक्यूट होगा, देयरफॉर इन थर्ड रो व्हेन i का वैल्यू 3 रहता है तब जाके इनर फॉर लूप जो है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगा, 3 स्टार्स हमको थर्ड रो में मिलेंगे। हेलो, यस, एंड सो ऑन। हेलो, यस सर। बघा असा पॅटर्न भेटला आहे ना, उलटा पॅटर्न भेटला आहे। नाउ ओनली वन थिंग वी विल हैव टू डू ईच टाइम है, पहला जो रो है हमारा, पहला जो रो है उसमें हमको 1 ब्लैंक स्पेस छोड़ने का है, दूसरा जो रो है वहां पे 2 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ने का है, यू कैन इमेजिन, तीसरा जो रो है ना उसमें हमको 3 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ने का है, चौथा जो रो है उसमें 4 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ेंगे, पांचवा जो रो है उसमें 5 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ेंगे, एंड ऑटोमेटिकली वी विल गेट आवर pyramid. Yes, inverted pyramid on the output screen. Yes. यस सर। तो अभी फिर से हमको k वाला फॉर लूप यूज करने का है विथ लिटिल प्रिकॉशंस एंड विथ लिटिल बिट केयर है, k यूज किया है यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे, फॉर ये जो फॉर लूप है वो ब्लैंक स्पेस छोड़ने के लिए यूज होगा, तो एक ब्लैंक स्पेस इसमें छोड़ेंगे। अभी कैसे लिखने पड़ेगा सोचो है, हमको जो
ब्लैंक स्पेसेस है वो रो वाइज इंक्रीज करने का है, ठीक है। हमको जो ब्लैंक स्पेसेस है वो रो वाइज इंक्रीज करने का है, इसलिए k इज इक्वल टू 1 लिखा, k इज लेस देन और इक्वल टू i लिखा, क्योंकि i का वैल्यू सेकेंड इटरेशन में 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, एंड नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस आल्सो वी कैन इंक्रीज। यस, हेलो, Yes, sir. अभी क्या होगा, एक 2-3 रो के लिए बताता हूँ, आप बाकी का समझ लो, है ना। ऐसा आपको करना पड़ेगा, है ना, जब तक आपको समझ में नहीं आता है ना, तब तक ये वाला जो प्रोसीजर मैं करता हूँ, है ना, खुद similarly you will have to do, then only you will get, okay, different kinds of patterns, how we can display it on the output screen. This is very important here, most of the times logically अभी ये पैटर्न क्यों हम लिख रहे पता नहीं मेरे को भी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमको आगे जाके व्हेन यू विल बी लर्निंग, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, at that time most of the times you will be dealing with data, and that data you will have to put in the different types of tables. Yes, टैबुलर फॉर्म में हमको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना पड़ रहा है, तब जाके ये लॉजिक जो है वो यूज होगा कभी तो आगे जाके, तब जाके यू विल हैव टू थिंक अ लॉट एंड टू हैव एन दैट प्रैक्टिस। नाउ वी आर लर्निंग दिस पैटर्न काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, ओके। हेलो, गेमिंग एप्लीकेशन भी लिखने का है आपको, है ना, सपोज गेमिंग एप्लीकेशंस भी आपको लिखने का है, तो दिस लॉजिक विल हेल्प अस यू। So therefore, you try to understand how looping control statements are executed, and nested for loop plays very vital role when you wanted to display different kinds of patterns on the output screen. This is the first application that we'll be learning in unit number 2. और जब हम आगे जाके, है ना, array सीखेंगे, वहाँ पे second application रहेगा nested for loop का, where we can deal with, है ना, solving some प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो वो सॉल्व करने के लिए हमको फिर से नेस्टेड फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, ओके। हेलो, यस, ओके सर। तो खाली देखो, है ना, ब्लैंक स्पेसेस कैसे इंक्रीज होगा, है ना, स्टार्टिंगली ये अभी आपको ये तो पता चला ये कैसे हो रहा है, ठीक है। हेलो, यस, ये अभी बताया है मैंने, ठीक है, ये फिर से नहीं बताऊंगा। तो खाली हम नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस जो है, हर एक पहले रो में कैसे वो एक ब्लैंक स्पेस छोड़ेगा, दूसरे रो में 2 ब्लैंक स्पेसेस कैसे छोड़ेगा, तीसरे रो में 3 ब्लैंक स्पेसेस कैसे आएगा, वो खाली बता रहा हूं मैं। इनिशियली i का वैल्यू 1 रहेगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडीशन फॉर आउटर फॉर लूप रिमेन्स ट्रू, देयरफॉर इट विल जंप टू इनर फॉर लूप ऑफ k। के फॉर लूप के यहाँ पे वो आएगा, k का वैल्यू 1 कंसीडर करेगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू, i का भी वैल्यू 1 है, 1 से लेके 1 तक यू विल हैव टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ k बाय ईच टाइम बाय 1, है। देयरफॉर यहाँ पे क्या करेगा वो, एक 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडीशन ट्रू होगा, और वो 1 ब्लैंक स्पेस छोड़ेगा। यस, हेलो, हेलो, Yes, sir. यहां से वो यहां जाएगा, k का वैल्यू जो है वो 2 होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू, i का वैल्यू अभी भी 1 है, फॉर फर्स्ट रो अभी भी 1 है, देयरफॉर ये लॉजिकल कंडीशन फॉल्स होगा, तब जाके वो ये जो 1 ही ब्लैंक स्पेस छोड़ के यहां से यहां जंप करेगा, और j का वैल्यू 5 कंसीडर करेगा, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, i का वैल्यू 1 है, तो 5 से लेके i का वैल्यू 1 तक, मतलब ये 5 टाइम्स, ये मतलब 5 स्टार्स वो डिस्प्ले करेगा फर्स्ट रो में। यस, मतलब एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के 5 स्टार्स आएगा, और फिर जाके बैकस्लैश एन एग्जीक्यूट होगा, तब जाके वो न्यू रो जो है वहां पे जाएगा, है ना, मशीन का कंट्रोल, और वो सेकेंड रो के लिए थिंकिंग स्टार्ट करेगा, तब जाके आई का वैल्यू जो है वो 2 होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू फॉर आउटर फॉर लूप, यहाँ पे आएगा k का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू i का वैल्यू 2 है, 1 से लेके 2 तक वैल्यू ऑफ k वी आर इंक्रीजिंग ईच टाइम बाय 1, देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है ये 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और 2 ब्लैंक स्पेस छोड़ेगा सेकेंड रो के लिए, क्योंकि i का वैल्यू 2 है। हेलो, Yes, sir. विचार करा, and we will get, and we will get काय म्हणणार आहे ना, we got an pyramid, an inverted pyramid on the output screen. Yes, hello, Yes, यस sir. सर। अभी इसको जनरलाइज्ड अगर करना है तो हमको खाली लास्ट टाइम जैसे किया था, है ना, नंबर ऑफ रोज वी कैन एंटर, r फॉर नंबर ऑफ रोज, लेट अस टेक इनपुट थ्रू द कीबोर्ड /n प्लीज, सॉरी,
please enter number of rows. How we can enter number of rows through keyboard? scanf %d, ampersand r, और जहां पे 5 लिखा था 5 नंबर ऑफ रोज के लिए, वहां पे हम r लिखेंगे, तब जाके वो r तक है ना, r का वैल्यू कंसिडर करेगा नंबर ऑफ रोज। उतने नंबर ऑफ रोज के लिए हमको इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा। अभी हम 20 लिखेंगे तो इन्वर्टेड पिरामिड फॉर 20 रोज। यस, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. have you understood how to apply logic and how it is playing a vital role? Because here to draw such kind of pyramid with our pen, as humans are having okay natural intelligence with them, आपण हे काढू शकू पेनाने फटाफट, बरोबर का? हेलो, such kind of pyramid we can draw with our pen and paper very easily. Yes, No, sir. पेन और पेपर Yes. का यूज करके हम जो है ऐसा वाला पिरामिड ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, कर सकेंगे हम, करना है क्या नहीं वो पता नहीं, लेकिन कर सकेंगे। उसको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, पता नहीं क्यों। नंबर ऑफ रोज जैसे इंक्रीज होगा उसके लिए टाइम लगेगा। सी हियर, such kind of design, if suppose you wanted to display somewhere in your software, so it is very difficult to display such kind of pattern on the output screen. To display such kind of pattern within less time, ठीक है, you will have to apply logic, and this logic will help us to display such kind of pattern. If suppose you wanted to display some kind of gaming, if you want to develop some kind of gaming applications, in such cases you can use okay such kind of patterns. Yes, hello, समझ में आया क्या? हेलो हेलो हेलो, चलो आगे जाएंगे। यस, कॉलम सर, कॉलम चेंज कर सकते हैं सर। क्या कॉलम इसको जनरल रख सकते हैं ना सर, कॉलम के लिए भी सर। हाँ, कॉलम के लिए भी, क्या ना? कॉलम के लिए स्कैन है बोरा में सर, और प्रिंट उसका रख सकते हैं सर। इनपुट, हाँ हाँ हाँ, इनपुट हम देते हैं ना सर, हम दे सकते हैं ना सर उसके लिए भी, कॉलम के लिए। कॉलम के लिए क्यों देना पड़ेगा? पिरामिड जो रहेगा वो कॉलम कहाँ उसमें आता है ना? कहाँ पे कॉलम का कुछ सवाल आता है? सोचो आप, है ना? पिरामिड के लिए खाली नंबर ऑफ रोज है ना, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर नंबर ऑफ रोज मतलब जो लास्ट वाला रो रहता है उसमें वो अगर 20 रोज रहेगा तो 20 स्टार्स आएंगे लास्ट वाले रो में। यस, अगर इन्वर्टेड रहेगा तो फर्स्ट वाले रो में 20 स्टार्स आना चाहिए, और स्लोली यू विल हैव टू डिक्रीज है ना नंबर ऑफ स्टार ईच टाइम बाय 1। और थोड़ा सा स्पेसिंग का लॉजिक है उसमें, एक ब्लैंक स्पेस रखना पड़ेगा। अगर वो ब्लैंक स्पेस नहीं रखा तो आपको एक अलग काइंड ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा। हेलो, ये पिरामिड नहीं रहेगा, हाफ ट्रायंगल कुछ जैसा है। यस, यस सर। दैट्स व्हाई वो ब्लैंक स्पेस जो है प्रिंटफ के पहले नहीं तो प्रिंटफ के बाद वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देने के बाद ही एक्चुअली हमारा ये जो पैटर्न है वो पिरामिड में कन्वर्ट होता है, ये वाला। एक तो आपको स्टार से पहले ब्लैंक स्पेस छोड़ना पड़ेगा। यस, नहीं तो स्टार के बाद भी ब्लैंक स्पेस छोड़ा तो भी चलेगा, मीनिंग रिमेन सेम। ओके, Sakib, please don't write anything. If you wanted to write, you can write. Okay, what you want to write? Do you want to write something? सर सर अनइंटेंशनली हो गया, सॉरी। ठीक है, नो इश्यूज। हाँ, चलो आगे जाएंगे। आज की वैल्यूज लिया है क्या आपके बैच को? डिवीजन ई, हेलो। No, sir. आज हम चैप्टर नंबर 2 खत्म करके ही रुकने वाले हैं। ठीक है, 12:30 के बजने के आफ्टर 12:30 है ना, वी विल बी कंटिन्यूइंग। विल इट बी ओके? 1:30 तक, 1:30 to 2:30 ब्रेक रहेगा। ओके, हेलो हेलो, अभी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। Okay, sir. हाँ, अगर किसी का बैटरी का इश्यूज रहेगा तो 12:30 को आप निकल जाओ, है ना। आई विल बी वेरी हैप्पी है। एक बच्चा भी रहेगा तो आई विल बी मोर हैप्पी है ना। अगर कोई नहीं रहेगा तो आई विल बी मोर हैप्पी। आई कैन डिक्लेयर है ना, यूनिट नंबर 2 इज ओवर। यस, हेलो,
अगर किसी को बैटरी का प्रॉब्लम है, इशू है, तो आपका अटेंडेंस लगा के आप जा सकते हो, है ना. सच काइंड ऑफ फ्रीडम आई विल बी गिविंग बिकॉज आई विल बी कंटिन्यूइंग टिल, है ना, 1:30. 1:30 तक हम हमारा क्लास कंटिन्यू करेंगे. 1:30 to 2:30 ब्रेक रहेगा. विल इट बी ओके? यस. यूनिट नंबर 2 हमारा एंड होगा आज. ओके. हेलो 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 हेलो. यस. आज की वैल्यू जाऊया 102. आज की वैल्यू का लिया है क्या आपको? हेलो. नो सर. ठीक आहे. बघा ना, आस्की व्हॅल्यू म्हणजे काय. लेट अस अंडरस्टँड आस्की and meaning of ASCII first. ASCII means American standard code for information interchange. ऐसा लॉन्ग फॉर्म है उसका, उसको ASCII बोलते हैं हम. और ASCII वैल्यू बोले तो एक इंटीजर वैल्यू रहता है. इंटीजर वैल्यू रहता है. हर एक ASCII वैल्यू को एक कैरेक्टर रहता है. हेलो. ओके. स्टैंडर्ड का स्पेलिंग कुछ तो गलत है शायद. स्टैंडर्ड, यस, गलत है. यस. हेलो 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 हेलो. कळतं का आस्की म्हणजे काय? हेलो. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. एक आस्की वैल्यू बोले तो एक इंटीजर नंबर है. हर एक नंबर के लिए एक कैरेक्टर एसोसिएट रहता है. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए अगर रहेगा तो उसका आस्की वैल्यू 65 रहता है. ओके. हेलो हेलो. हर एक कैरेक्टर के लिए ओके सर. वैल्यू असाइन है. किसने असाइन किया है? अमेरिकन सोसाइटी ने असाइन किया है, ऐसा बोलेंगे हम. क्योंकि बहुत ज्यादा है ना डेवलपमेंट जो हुआ है वो बाहर का कंट्री में हुआ है. एक्चुअली हमारे इंडियन कंट्री में ज्यादा डेवलपमेंट ऐसा कुछ कंप्यूटर का हुआ नहीं है. इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके सब कुछ सीख रहे हैं. पता नहीं क्या क्या है उसका, बहुत हिस्ट्री अलग से है. लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तब जाके पुराने जमाने में एक्चुअली हमारे राजा महाराजे लोग जो थे वो कुछ अलग लाइफ जीते थे. पता नहीं है. मतलब जो इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ. वो हिस्ट्री में देखो आप. और यहाँ पे बाकी का जो कंट्री है ना उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है ना इंटेलेक्चुअली, ऐसा बोलेंगे हम. अब ये इंटेलेक्चुअल ऐसा बोलते हैं ना, इंडिया में जो ज्यादा कुछ डेवलप हुआ है वो स्पिरिचुअली है. we got developed, but other countries and other nations, if you will consider, so they developed intellectually. ऐसा कुछ बोला जाता है, पता नहीं ये गलत है सही है. तो ये अमेरिकन नाम क्यों आया है कि अमेरिकन ने वो डिसाइड किया है. मतलब कैपिटल ए को 65 वैल्यू दे दो है. अगर स्मॉल ए रहेगा तो उसका आस्की वैल्यू 97 रहेगा. दिस इज प्री डिफाइंड. ओके. हेलो. वैसे ही अगर बी रहेगा, बी कैपिटल बी, तो उसके लिए क्या रहेगा आस्की वैल्यू? वो सीक्वेंस में रहता है. हेलो. 66. यस. स्मॉल बी रहेगा तो उसका आस्की वैल्यू क्या रहेगा? हेलो. ओके. हाँ. So these are the ASCII values, and for each and every ASCII value, certain characters are associated. And character set already we have seen. And character set is collection or group of characters. कैरेक्टर सेट मीन्स क्या क्या है ना, हमने उससे स्टार्ट किया था हमारा सेशन. कैरेक्टर सेट इज नथिंग बट कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. एंड कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इफ यू विल बी कंसीडरिंग, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज एक्चुअली. अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स. अल्फाबेट्स में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, इसको हम अल्फाबेट्स बोलते हैं. डिजिट्स को हम 0 to 9 डिजिट्स यूज करते हैं. और स्पेशल सिंबल जो रहेगा, जो क्वेश्चन मार्क रहेगा, एम्पर साइन रहेगा, एट द रेट सिंबल रहेगा, एक्सक्लेमेटरी रहेगा, टिल्डी सिंबल रहेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस, ये जो सब कुछ सिंबल्स है उसको हम तीसरा कैटेगरी कहते हैं. यस. हेलो. तो हर एक आस्की वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर एसोसिएटेड कैरेक्टर जो है वो डिफाइंड है. आस्की वैल्यू जो है वो लिमिटेड है. 0 सी का बता रहा हूँ, बाकी का कुछ पता नहीं है ज्यादा. 0 से लेके 255 है ना. देर आर टोटल कितना रहेगा 0 को पकड़ के? हेलो हेलो
जीरो को पकड़ के कितना रहेगा फिर, 0 से लेके 250 तक आस्की वैल्यूज है ना अवेलेबल, कितना रहेगा टोटल आस्की वैल्यूज, 1 से रहता तो 255 रहता, सोचो आप, 256 जीरो रहेगा तो जीरो को आपको काउंट करना पड़ेगा, 256 टोटल आस्की वैल्यूज विच आर प्रेजेंट, कितना है 256 है, यस, जीरो को पकड़ो, लो जीरो, जीरो को गिन के है ना, जीरोला मोजून, यस 256 आस्की वैल्यूज आर प्रेजेंट। अभी थोड़ा सा देखेंगे ये आस्की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ मैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसका नाम ch इज इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, और ये ch का वैल्यू मशीन को दिया है ना, मशीन को दिया, ch का वैल्यू क्या दिया, 1 दिया है ना, 1 मशीन को वैल्यू, ch का वैल्यू 1 दिया है ना मशीन को, और डिस्प्ले करने के लिए कहा ch का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, ch का वैल्यू आई वांटेड टू डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, एक्चुअली ch is integer type of variable, in this ch variable we can store integer type of values, but I am giving information to machine to display an character value for that integer percent c comma ch, तो वो क्या करेगा, जो 1 वैल्यू है आस्की वैल्यू 1 जो है वो ch नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ, और उस 1 वैल्यू के लिए कैरेक्टर कौन सा एसोसिएटेड है, दैट आई वांटेड टू डिस्प्ले ऑन द आउटपुट स्क्रीन, देयरफॉर %c, ch लिखा है। तो वो अगर प्रोग्राम हम रन करेंगे तो हमको 1 आस्की वैल्यू के लिए कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, डिफाइंड है, वो दिखाएगा। क्या है ये, हेलो, फेस है सर, थोड़ा हाँ छोटा। करेक्ट, फेस है, ऊपर के जो 2 डॉट दिखाई दे रहे वो आईज है, और नीचे का जो थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है वो लिप्स है, लिप्स, यस, Yes, sir. मराठीत वोट, वोट म्हणणार आपण, हिंदी में क्या है, वोट ही है, यस, होंठ सर। ओंठ, ठीक है, ओंठ, ठीक है, ओंठ, वोट, और जो ये थोड़ा सा बाहर का जो है वो सिर है, सिर रहेगा, मतलब टोटली एक स्माइली बोलेंगे हम इसको। अगर आप कुछ मैसेजेस वगैरह लिख रहे हो तो स्माइली समटाइम्स वी आर सेंडिंग टू आवर फ्रेंड्स, through which you can represent your feelings, yes, hello, yes, Yes, sir. मतलब एक आस्की वैल्यू के लिए स्माइली है, अभी देखो है, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, शिफ्ट इंसर्ट, एक 4-5 आस्की वैल्यूज का दिखाएंगे बाद में कैसा रहता है, एक प्रोग्राम लिख के पूरे आस्की वैल्यूज आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाने का वो भी प्रोग्राम लेंगे। तो ch का वैल्यू 2, अगर 2 रहेगा तो उसका आस्की वैल्यू क्या आता है, ठीक है, ch का वैल्यू अगर 3 रहेगा तो उसका, उसके लिए कैरेक्टर क्या मिलेगा, ch का वैल्यू 4 रहेगा तो उसके लिए कैरेक्टर क्या मिलेगा, 5 रहेगा तो उसके लिए क्या मिलेगा, लेट अस डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट स्क्रीन, ये एक्स्ट्रा हुआ शायद। तो एक के लिए हमको स्माइली मिल रहा है, दूसरे 2 के लिए भी स्माइली ही मिलता है, थोड़ा सा अलग वाला स्माइली है, यू कैन ऑब्जर्व इट। 3 के लिए हार्ट मिलता है, हार्ट एंड, अगर आप पत्ते खेलते हो तो उसको बादाम बोलते हैं, यस, हेलो, यस, 6 तक जाएंगे हम, 6 तक, 6 को रुकेंगे। तो 3 अगर रहेगा मतलब इंटीजर वैल्यू 3, और उसके लिए कैरेक्टर क्या एसोसिएटेड है, तो हार्ट का शेप जो एसोसिएटेड है। 4 अगर कंसिडर करेंगे तो उसको डायमंड आता है, डायमंड, डायमंड वाला सिंबल, और 5 के लिए शायद क्लब आता है, क्लब, इसको मराठी में किलवर म्हणतो आपण, यस, चौकट, डायमंड के लिए चौकट, और 5 के लिए क्लब, क्लब बोले तो किलवर, पत्ते में रहता है किलवर, और 6 बोले तो स्पेड रहता है, स्पेड, स्पेड मतलब स्पीक, यस, हेलो, हेलो, यस, आर यू गेटिंग, समझ लगा। Yes, sir. हर एक आस्की वैल्यू के लिए सर्टन कैरेक्टर एसोसिएटेड है। अभी यहाँ पे मैं 6 की जगह पे 65 लिखूंगा तो क्या मिलेगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 65 के लिए, हेलो, A. वेरी गुड, यस,
Yes, sir. अगर इसको कॉपी किया 66 लिखा तो क्या मिलेगा? B, sir. बी मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे जाके 97 लिखा तो क्या मिलेगा? Small c. हाँ, स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए। अगर 98 लिखा तो Small B. Small b. स्मॉल बी। देयरफॉर फॉर मशीन कैपिटल ए अलग रहता है और स्मॉल ए अलग रहता है। ह्यूमन बीइंग के लिए दोनों का मीनिंग ए ही है। यस, लेकिन ASCII values are different for machine. For machine, ASCII values are different. Therefore, whenever you will be logging into any system, at that time you will be entering your password, and if you are not taking care of case sensitivity, at that time system displays an appropriate message, you have entered wrong password, like that. Yes. Hello. बिकॉज ASCII वैल्यूज आर डिफरेंट। अगर आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर रहेगा तो आपको पासवर्ड में कैपिटल लेटर ही डालना पड़ेगा, बिकॉज केस सेंसिटिविटी एंड ASCII वैल्यूज फॉर ईच कैरेक्टर रिमेन्स डिफरेंट। देयरफॉर यू विल हैव टू टेक केयर व्हाइल एंटरिंग योर पासवर्ड। यस, हेलो, कड़ लगा है? समझ में आया क्या? हेलो हेलो हेलो। कुछ डाउट इश्यूज रहेगा तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल गो टू नेक्स्ट। यस, हेलो, समझ लगा ये? Yes, sir. हाँ, अभी देखो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, %c की जगह पे %d लिखा, इज इक्वल टू लिखा और ch फिर से लिखा, तो वो क्या करेगा? ये ch जो है वहां पे इंटीजर वैल्यू दिखाएगा, मतलब 1 दिखाएगा, और 1 के आगे है ना, इज इक्वल टू के बाद %c बोले तो उसका कैरेक्टर जो एसोसिएटेड है फॉर 1 ASCII वैल्यू, व्हाट इज द कैरेक्टर एसोसिएटेड, दैट विल बी डिस्प्लेड। एंड ईच टाइम ch लिख रहे हैं हम, तो ch का वैल्यू इंटीजर मतलब यहाँ पे ASCII वैल्यू दिखाएगा, ch का वैल्यू %c आफ्टर इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे वो कैरेक्टर दिखाएगा। तो ये स्टेटमेंट इज हेल्पिंग, दिस स्टेटमेंट इज हेल्पिंग अस टू डिस्प्ले है ना ASCII वैल्यू अलोंग विद कैरेक्टर। यस, लो, ऐसा दिखाएगा कुछ तो देखो है ना, सोचो। यस, मतलब एक ASCII वैल्यू रहेगा तो उसको कौन सा कैरेक्टर आता है वो आगे दिखाने के लिए वैसा लिख सकते हैं हम। यस, Yes, sir. तो ये समझ, ये आपको समझा है ऐसा समझ के, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। सेव एज 103.c। अभी हमको करना क्या है कि हमको डिस्प्ले करने का है ना हर एक ASCII वैल्यू, जो 56 ASCII वैल्यूज है ना, वो ऑल 56 वैल्यूज आई वांटेड टू डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे हर एक के लिए ऐसा ch इज इक्वल टू 1 ये स्टेटमेंट, फिर ch इज इक्वल टू 2, फिर ये स्टेटमेंट ch इज इक्वल टू 3, ऐसा 256 times we cannot write। yes, to avoid this we can use for loop, and for loop will help us to display all ASCII values with their associated characters on the output screen. To display all ASCII values with associated characters, we can write one program, and for this we can use one looping control statement। कैसा लिखेंगे देखो है ना, a C program to display all ASCII values with their associated characters on the output screen। yes, तो ch इज इक्वल टू इंटीजर यूज किया है, तो हमको हर टाइम वो ch इज इक्वल टू 1 ऐसा नहीं देने का है। इसके लिए हम इसको बॉडी में डालेंगे, जो लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होगा, और फॉर लूप यूज करके इसको खत्म करेंगे। ch इज इक्वल टू 0, नाउ यू थिंक ch इज लेस देन और इक्वल टू 255 ch प्लस प्लस। यस, हेलो, तो क्या करेगा वो मशीन जो है, यहाँ पे बैकस्लैश n यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर बैकस्लैश n यूज किया तो हमको वो पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। यू कैन थिंक एक ब्लैंक स्पेस छोड़ के, एक या दो ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे, और वो सब ASCII वैल्यूज विथ देयर कैरेक्टर विथ एसोसिएटेड कैरेक्टर्स वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा है ना मशीन।
CH का वैल्यू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 255, लॉजिकल कंडीशन ट्रू रहेगा, यहाँ पे आएगा 0 के लिए क्या कैरेक्टर है वो दिखाएगा, यस। फिर CH का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, 0 से लेके 1 होगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 255, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू फॉर सेकंड टाइम, 1 के लिए क्या ASCII वैल्यू दिखाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा CH का वैल्यू 2 होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 255, लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स फॉर थर्ड टाइम, 2 के लिए क्या ASCII, ऐसा करके वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये, चलो 256, 0 से लेके 255, यस। यस सर। और सब ASCII वैल्यूज मशीन दिखाएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, यस। अभी कुछ कुछ ASCII वैल्यूज के लिए मिसिंग है ना, कुछ कुछ ASCII वैल्यूज अगर आप देखोगे यहाँ से 11, 12, 13 दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, यस। तो क्यों नहीं दे रहा है, दैट इज होमवर्क फॉर यू, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो है ना, फ्रॉम 11 years, फ्रॉम लास्ट 11 years आई एम एक्चुअली टीचिंग दिस सब्जेक्ट, बट आई डोंट नो एंड फ्रॉम व्हाई ASCII वैल्यू जो है वो कौन सा 11, 12 एंड 13 वो क्यों मिस है, वो मेरे को पता नहीं है। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में किसी को पता चलेगा तो प्लीज बताओ मेरे को, यस। हेलो, 255 का भी नहीं है सर। हाँ, 255 का भी नहीं है, एक्चुअली ब्लैंक है वहां पे। समझ में आ रहा है क्या कैसे डिस्प्ले हो रहा है वो? हेलो, बाय यूजिंग फॉर लूप, यस। अभी ये केयरफुली ऑब्जर्व करोगे आप तो आपको कुछ कुछ ASCII वैल्यूज और कैरेक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये टर्बोस या एप्लीकेशन का यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल ये वाला एरो देखो, ये वाला एरो लेफ्ट साइड वाला एरो है ये, यस। हेलो, दिखाई दे रहा है? एरो दिखाई दे रहा है क्या मेरा माउस का? हेलो, यस सर। तो ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये कुछ तो नेट काइंड ऑफ जाळी सारखं दिसतंय है ना, नेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, छोटा छोटा कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा है ना, कुछ कैरेक्टर्स का है ये। अगर देखो ये शायद 8 ASCII वैल्यू 8 कंसिडर किया तो ये वाला सिंबल यहाँ पे मिलता है। मतलब ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, डेनिस रिची ने जो ये एप्लीकेशन बनाया है, ये एप्लीकेशन बनाने के लिए उसने पूरा ASCII वैल्यूज यूज किया है ना, और हमको ये स्क्रीन दिखाई देता है हम जहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इसके लिए भी उसने प्रोग्राम किया है। such amazing software he developed where actually we are learning है ना C language, you can imagine, yes। ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामिंग सीखने के लिए उसने सॉफ्टवेयर बनाया, इसके लिए कोडिंग किया है ना। यू कैन थिंक अ लॉट एंड व्हाट काइंड ऑफ जीनियस, ओके, डेनिस रिची है वो। आप गूगल पे जाके अगर डेनिस रिची का फोटो देखेंगे तो आपको मिलेगा है ना। हमारे लैब में एक्चुअली लगा के रखा है, अनफॉर्चुनेटली आप लैब को विजिट नहीं कर पा रहे इसलिए आप देख नहीं पा रहे, मेरे ऊपर ही रहता है वो, ठीक है। यहाँ पे है डेनिस रिची, उसको ट्यूरिंग अवार्ड मिला है ना, ट्यूरिंग अवार्ड मतलब मशीन लर्निंग में एक कुछ तो अवार्ड रहता है, वो ट्यूरिंग अवार्ड है। उसका भी थोड़ा सा सर्च करो आप, आपको मिल जाएगा ना ट्यूरिंग अवार्ड क्या रहता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बताता हूँ, थोड़ा सा पढ़ा था मैंने बीच में। एक वॉल रहेगा ना, वॉल, और वॉल के दूसरे साइड, ठीक है, उसको दरवाजा नहीं रहेगा वो वॉल को, वॉल के दूसरे साइड एक तो आदमी बैठेगा, नहीं तो मशीन बैठेगा, ठीक है। और यहाँ से सर्टन, यहाँ से बघतो मॅडम। तो वॉल के दूसरी साइड एक आदमी रह सकता है, नहीं तो कंप्यूटर रहेगा, और दूसरी साइड पे आदमी रहेगा, ठीक है। वो आदमी बात करेगा, है ना, आदमी बात करेगा, और आदमी बात करने के बाद कंप्यूटर नहीं तो आदमी है ना, अगर आंसर दे रहा है तो उसमें पता नहीं चलना चाहिए कि आंसर जो दे रहा है वो मशीन है या आदमी है। सच काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या कुछ एग्जांपल, एनालॉजी? हेलो, ट्यूरिंग बोल के कुछ तो स्टार्टिंग में है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब मतलब स्टडी चल रहा था, ये पहला वाला एक्सपेरिमेंटेशन किया गया जहाँ पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट करके दूसरी साइड पे ह्यूमन और उसके एक साइड पे ह्यूमन और दूसरे साइड पे ह्यूमन नहीं तो मशीन रहेगा,
और जो पहला वाला साइड पे है ना, फर्स्ट वाला साइड जो रहेगा ना, वहां से ह्यूमन बात करेगा या कुछ इंस्ट्रक्शंस पूछेगा, और दूसरी साइड से, दूसरा वॉल के साइड से है ना, एक तो आंसर मिलेगा। वो आंसर जो है वो एक तो आदमी देगा, नहीं तो मशीन देगा। अगर मशीन दे रहा है और इस आदमी को पता नहीं चल रहा है कि मशीन दे रहा है ह्यूमन के जैसा, सच काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ सपोज यू विल बी, मतलब ये एक एनोलॉजी है। समझ में आ रहा है कि कुछ है? हेलो हेलो, नहीं आया तो छोड़ दो है ना, चलो। सो हैव यू अंडरस्टूड आस्की वैल्यूज यूज करके उसने ये पूरा मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया है। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, यस, हेलो, कोई है क्या? सर तो वो शायद 205 का जो 2 लाइंस दिखाई दे रहा है, वो जो लाइंस है वो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस है। समझ में आ रहा है क्या? हम्म? यहाँ पे जो बटन है, ग्रीन वाला बटन, ग्रीन वाला बटन जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है, पता नहीं कौन सा शेप है, तो वो भी आपको किधर तो मिलेगा यहाँ पे। मे बी 223 वाला जो दिखाई दे रहा है सिंबल या कैरेक्टर, नहीं तो 254 को भी वैसा कुछ सिंबल है। यस, हेलो, ये 177 को जो भी कुछ सिंबल दिखाई दे रहा है, ये देखो अभी 177, तो यहाँ पे है वो। यस, हेलो हेलो, दिखाई दे रहा है क्या आपको स्क्रीन पे? चला, काय आन्सर नाही. आय शुड नॉट सपोज टू डिस्कस सच टू, काय बघा ना. जाऊया पुढे जाऊया. हॅव यू अंडरस्टूड हाऊ टू डिस्प्ले आस्की व्हॅल्यूज? हेलो, F3 101.c. अभी देखो है, हमने पिरामिड का प्रोग्राम लिखा था. पिरामिड के प्रोग्राम के अंदर हमने अगर ये एग्जीक्यूट किया तो हमको कुछ तो ऐसा मिल रहा है ना, 5 रोज के लिए पिरामिड मिल रहा है. ये स्टार की जगह पे आई वांटेड टू डिस्प्ले हार्ट शेप, क्या करेंगे, कैसा करेंगे? आई वांटेड टू डिस्प्ले है ना पिरामिड ऑफ हार्ट शेप. ये स्टार की जगह पे हमको हार्ट शेप दिखाने का है. हार्ट शेप दिखाने के लिए उसका आस्की वैल्यू क्या है हमको पता है. 3 आस्की वैल्यू के लिए वो आता है हार्ट शेप. तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, कैरेक्टर बोल के. इंटीजर टाइप का लिया तो भी चलेगा. ch का वैल्यू आपको 3 देना पड़ेगा, और जहाँ पे आपने स्टार डिस्प्ले किया है वहां पे आपको कैरेक्टर वैल्यू उसका डिस्प्ले करना है, %c, और किसका, ch का. यस, हेलो, ch का वैल्यू 3 दिया है ना, ch का वैल्यू 3 दिया है. 3 आस्की वैल्यू फॉर 3 है ना, फॉर 3 आस्की वैल्यू मशीन डिस्प्लेज हार्ट शेप, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन नाउ. एंड देयरफॉर इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेके ch इज इक्वल टू 3 लिखा है, सेमीकोलन मिस हुआ, सॉरी. तो उसके बाद यहाँ पे स्टार की जगह पे हमने %c लिखा है, मतलब वो कैरेक्टर वी वांटेड टू डिस्प्ले ऑन द आउटपुट स्क्रीन. ch का वैल्यू 3 जब रहता है तब जाके हमको उसका कैरेक्टर जो भी एसोसिएटेड है वो दिखाने का है. तो हमको सिंपली वो पैटर्न मिलेगा, देखो. यस, लो, समझ लगा? Yes, sir. अगर आप 3 की जगह पे, सॉरी, 3 की जगह पे 4 लिखेंगे तो आपको डायमंड मिलेगा. डायमंड, डायमंड बोले तो चौकट मराठी में. यस, हेलो हेलो, Yes, sir. वेरी गुड. अगर आपको देखो है ना, थिंकिंग है ना, थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे ये निकाल के क्या किया देखो है ना, ch का वैल्यू जो है, ch का वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने ये दिया, ch इज इक्वल टू 65.
क्या होगा? हेलो, क्या दिखाएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर? Yes. हाँ, पिरामिड ऑफ ए, यस। Yes, sir. अभी क्या किया, सी एच का वैल्यू खाली डिफाइन करके यहाँ पे सी एच का वैल्यू एक एक से इंक्रीज किया। क्या होगा अभी? लो, तो पहला जो ए है वहां पे ए दिखाएगा, दूसरा जो ए है वहां पे क्या दिखाएगा? बी दिखाएगा। हेलो, अलग पैटर्न मिलेगा, है ना? यू आर नॉट थिंकिंग, सी अ लॉट ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड अनफॉर्चुनेटली। यस, Yes, sir. Yes, sir. विचार करा की तिकडे आहे ना, आस्की व्हॅल्यू शिकलं की आता आहे ना? अलग पैटर्न मिलेगा, अलग पिरामिड मिलेगा, अल्फाबेट्स वाला पिरामिड मिलेगा, एबीसीडी से चालू हुआ है। अगर उल्टा किया है ना, उल्टा किया मतलब क्या उल्टा किया, देखो है ना, कैसा भी लॉजिक लगाओ यहाँ पे, जेड का वैल्यू 90 है शायद, 90 से लेके यहाँ पे सी एच माइनस माइनस किया तो हमको जेड से डिस्प्ले करेगा वो उल्टा। हमको ए टू जेड आएगा, है ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड से उल्टा नहीं आएगा एक्चुअली, मेरे को तो नहीं आएगा, कोई तो रहेगा, है ना, जिसको जेड से उल्टा बोलने के लिए आएगा। तो उल्टा सीक्वेंस में, उल्टे सीक्वेंस में डिस्प्ले करेगा। हेलो, यस। Yes, sir. To display such kind of patterns on the output screen, we can use, okay, some kind of such kind of logic. So ASCII values plays a vital role. I hope you have understood. डिले फंक्शन भी यूज किया था हमने कभी, तो डिले किया था यूज, यस। उसके लिए कौन सा हेडर फाइल वी हैव टू इंक्लूड एट द टॉप, dos.h। और अभी सोचो, अगर मैंने, है ना, अगर मैंने यहाँ पे डिले दिया, डिले ऑफ थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 100 मिली सेकेंड्स, तो हर एक कैरेक्टर को डिले लगेगा, हर एक कैरेक्टर को डिले लगेगा, यस। हेलो, Yes, sir. बघा, हर एक कैरेक्टर को डिले लगेगा ऑफ 100 मिली सेकेंड्स। समझ लगा? हेलो, Yes, sir. देखो सब कैरेक्टर्स दिखा रहा है वो एक्चुअली। अभी जेड खत्म हुआ, जेड खत्म होने के बाद एट द रेट सिंबल आया है, क्योंकि आस्की व्हॅल्यू चेंज हुआ उसका। कसं आहे बघा, काय बरं का, ते जर इथून आहे ना, इथून इफ आई विल रिमूव दिस डिले है ना, एंड आई विल गिव इट हियर है ना, आफ्टर बैकस्लैश एन, तो कहाँ पे डिले लगेगा? हेलो, सोचो, बैकस्लैश एन के बाद डिले दिया है ना, कहाँ पे लगेगा डिले? डिले जो है वो रो को लगेगा, यस, एंटायर रो को डिले लगेगा। लो, विचार करा, देखो अभी है, यस। समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। हेलो, चुकलो काहीतरी, सॉरी, जास्त टाकलं आहे ना, 10 लिखना था, 100 लिखा शायद। समझ में आया क्या? डिले जो है वो एंटायर रो को लगा है यहाँ पे 100 मिली सेकेंड्स का। हेलो, यस। देखो फिर Yes, sir. एंटायर रो को डिले 100 मिली सेकेंड्स का, अगर यहाँ से डिले कॉपी करके वो इनर फॉर लूप के अंदर लिखेंगे तो हर एक कैरेक्टर को डिले लगेगा, यस। यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया तो क्या होगा पता नहीं, दोनों को मतलब रो और कैरेक्टर को डिले लगेगा। समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, लेकिन रो को भी डिले लग रहा है और कैरेक्टर को भी डिले लग रहा है। समझ लगा है? हेलो, यस। लेट अस गो टू नेक्स्ट, save as 104.c
FY। अभी देखो है व्हाट इज मीन बाय वोवेल। थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रोग्राम्स लेंगे और चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे एंड होगा हमारा। चलो वोवेल्स म्हणजे काय? हेलो, राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले काय बघा ना, टू डिटरमाइन म्हणू आपण, टू डिटरमाइन entered character is vowel। वोवेल स्पेलिंग क्या है देखो, बराबर, यस, वोवेल और कॉन्सोनेंट स्पेलिंग बराबर है क्या देखो एक बार। हेलो, वोवेल नो सर, क्या है? VOWEL। W है, VO वोवेल, सॉरी W। वोवेल है, वोवेल, VOWEL वोवेल। तो किसको कहते हैं वोवेल? मराठीमध्ये स्वर म्हणतात आणि कॉन्सोनंटला व्यंजन म्हणतात, व्यंजन। स्वर म्हणजे काय? कितने हैं वोवेल्स? 5. 5 सर। कुठले कुठले, कौन सा है? A, E, I, O, U. काय म्हणायचं त्याला वोवेल्स? व्हाय वी आर कॉलिंग देम एज वोवेल? हेलो, अभी देखो है ना, AEIOU जब हम कहते हैं तब जाके हमारा लिप कभी टच नहीं होता है शायद, और जो ये अल्फाबेट्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये थ्रोट से डायरेक्ट निकल के बाहर आ रहे हैं। यस, AEIOU, यस। पी, अगर पी है ना, पी बोलने का है तो तब जाके लिप्स चिपक रहे हैं एक दूसरे को, है। थ्रोट से निकलने वाला आवाज जो है वो किधर तो रुक के फिर से निकल रहा है, पी, यस। के, अभी के लिए क्या हो रहा है कि हमारा जो टंग है वो ऊपर, मराठी में हम टाळा म्हणतो आपण, टाळाला चिटकते है ना जीभ, ऊपर ऊपर टच होता है ना। तो वोवेल जो है उसको मतलब टचिंग नहीं है किधर भी, लिप्स का और या टंग का है ना, ऊपर का जो जॉ रहेगा ना उसको टच नहीं हो रहा है ना, AEIOU, ऐसा एक मीनिंग है। और बाकी का जो है ना कॉन्सोनेंट्स अगर है तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपका टचिंग हो रहा है ना, लिप्स का नहीं तो टंग का। यस, हेलो, हाँ सर। जेड कहने का है मेरे को, जेड, तो जेड के लिए ऊपर टच हो रहा है टंग। हाँ सर, वो। हाँ, और एक क्या है, अगर हम ए को बोलेंगे, जब तक हमारा सांस है तब तक हम कह सकते हैं ए को, यस। इसको भी मतलब ओवेल का एक डेफिनेशन है, ए जब तक सांस है तब तक कह सकते हैं हम। झेड के लिए वैसा कह सकते हैं क्या? झेड खत्म होता है वो, यस। हेलो, पी, पी होता है लेकिन वो ई आता है उसके बाद, यस। वो वोवेल, वो वोवेल है। ई जो है वो वोवेल है ना, पी, देखो है ना, ई ई ई जो है वो वोवेल है ना। एस खत्म हो गया। के, अभी के कहोगे तो ए आ रहा है लास्ट में, यस, वोवेल है वो। हेलो, तो वोवेल्स का कैसा है कि कंटिन्यूअसली जब तक सांस है ना तब तक हम उसको मतलब, इसीलिए उसको स्वर रहा है ना, इसीलिए वोवेल बोलते हैं। तो AEIOU ये 5 है ना इंग्लिश में। मराठी में शायद कितना है, 12 है या क्या है पता नहीं। AIUO असलं काहीतरी आहे ते, 12 खडी आपण शिकलो, यस। हेलो, अ पासून आ पर्यंत। हेलो, बरोबर है का बघा, यू कैन, हिंदी में भी शायद रहेगा A, A, I, I, U, ठीक है, वो भी उसको हम स्वर बोलते हैं। तो अभी हमको ऐसा प्रोग्राम लिखने का है वेयर विल बी एंटरिंग कैरेक्टर एंड एंटर्ड कैरेक्टर वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, मशीन बताएगा, यस। सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन एंटर्ड कैरेक्टर, जो भी एंटर कैरेक्टर हम करेंगे वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है वो मशीन बताएगा।
प्रैक्टिस प्रोग्राम है ये हमारा। वैसा जो पार्ट है ना खत्म हुआ है, सिलेबस ऑलमोस्ट। दो छोटे टॉपिक्स है वो हम इस प्रोग्राम के बाद लेंगे, है ना, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो वोवेल देखो है ना, कैरेक्टर एंटर करेंगे हम, कैर CH प्रिंटर स्लैश एन प्लीज एंटर। अब यहाँ पे कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, है ना, प्लीज एंटर। कस्टमर को क्या एंटर करना पड़ेगा? हेलो, अल्फाबेट, क्योंकि कैरेक्टर में डिजिट भी आ सकता है, उसका हम बाद में सोचेंगे। सोचो आप तब तक। स्कैनर, यहाँ पे क्या आएगा? %C, एम्परसाइंड CH, सॉरी। अभी देखो है ना, सेव करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद मैसेज आएगा प्लीज एंटर अल्फाबेट। अगर हम कैपिटल ए डालेंगे तो वो मशीन बोलना चाहिए कि इट इज वोवेल। यस, हेलो हेलो। अगर किसी ने कैपिटल P डाला तो वो बोलना चाहिए इट इज कॉन्सोनेंट। हेलो, यस। काय अवघड आहे ना, यस यस म्हणायला पण ताकद नाही वाटत तुमच्याकडे। Else. अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो दिखाएगा कि इट इज कॉन्सोनेंट है। तो डिस्प्ले करना क्या है? प्रिंट है /n %C बोले तो वो कैरेक्टर इज वोवेल CH। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, इज यस। हेलो, खाली लॉजिकल कंडीशन जो है वो इम्पोर्टेंट है ना, CH का वैल्यू है ना, CH का वैल्यू अगर कैरेक्टर कांस्टेंट। देखो अभी इधर खाली हम ए के लिए अगर आस्की वैल्यूज भी यूज करके आप लिख सकते हो। आस्की वैल्यू कैपिटल ए का क्या है? खाली ए के लिए दिखा रहा हूं मैं, आस्की वैल्यूज यूज करके क्या है? कैपिटल ए 65, CH का वैल्यू 65 रहेगा तो वो ओवेल रहेगा। कैपिटल ए के लिए खाली दिखा रहा हूँ, बाकी का आपको आस्की वैल्यू वो प्रोग्राम लिख के पता करना पड़ेगा। ए के लिए क्या है, ई के लिए क्या है, आई के लिए क्या है, ओ के लिए क्या है, यू के लिए क्या है, आपको देखना पड़ेगा। खाली ए के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ए कैपिटल ए के लिए। और और CH का वैल्यू स्मॉल ए के लिए क्या है? हेलो, 97। यस सर। अगर कैपिटल, खाली कैपिटल ए के लिए आस्की वैल्यू यूज करके, है ना, हाउ टू डिटरमाइन इज इट ए ओवेल और नॉट, है ना, वो हम दिखा रहे हैं अभी। खाली यहाँ पे कैपिटल ए दिया तो वो बोल रहा है ए इज ओवेल। कैपिटल स्मॉल ए दिया तो भी वो बोलेगा ए इज ओवेल। लेकिन कैपिटल ई दिया या स्मॉल ई दिया तो वो नहीं दिखाएगा, इट इज कॉन्सोनेंट दिखाएगा, क्योंकि उसका हमने लॉजिकल कंडीशन यूज नहीं किया है। यस, मशीन को जितना सिखाया जाएगा, जितना लॉजिकल कंडीशंस यूज करके आप बताओगे उतना ही वो थिंक करेगा, अदरवाइज कुछ भी दिखाएगा। अनडिजायर्ड आउटपुट विल बी डिस्प्लेड इफ योर लॉजिक इज नॉट करेक्ट। यस, हॅलो, Yes, sir. विचार करा, ई ची आस्की व्हॅल्यू किती येईल हो? आपण ई साठी बघू, आहे ई जवळच आहे ना, ABCD लगेच आहे, सांगा ई ची किती येणार? ई ची आस्की व्हॅल्यू ए ची 65 असेल तर ई ची किती? कॅपिटल ए ई 69. 60 9. 65 जर कॅपिटल ए ची असेल तर कॅपिटल ई ची किती? ई ई ई फॉर इडलिंबू एलिफंट। मोजा की तिकडे ABCDE आहे। ए ला 65 असेल, 67, 68, 69, 69. 65 ए ला असेल, ABCDE ए ला 65, 66, 67, 68, 69। यस, हाँ, स्मॉल ई, हेलो, स्मॉल ई 97, 98, 99, 100, 101. बघा अवघड आहे। अभी अभी लास्ट वाला जो प्रोग्राम था उसने कॉन्सोनेंट दिखाया था ई को, अभी वो दिखाएगा वोवेल। यस, हेलो, Yes, sir.
कैपिटल ई लिखा तो भी वो बोलेगा ओवेल है, बिकॉज ASCII values we have written. But most of the times it is, if it is not possible for you to remember, I know all ASCII values, you can use character constants. वो कैसे यूज करने का है वो दिखा के आगे जाएंगे, ज्यादा टाइम जा रहा है ना। CH इज इक्वल टू कैपिटल ए डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, और CH इज इक्वल टू कैप स्मॉल ए है, इसको हम कॉपी करेंगे, 4 बार पेस्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट। लॉजिकल और क्यों आया है सोचो आप, ठीक है। शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट कितना बार हुआ, 4 बार हुआ कि 5 बार हुआ? शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट। तो पहला जो है वो ए, दूसरा जो है ए ई है ना, ई फॉर एलिफेंट, कैपिटल ई, ए ई आई आई, स्मॉल आई, ए ई आई ओ, स्मॉल ओ, कैपिटल ओ, ए ई आई ओ यू, स्मॉल यू, कैपिटल यू। यस, हेलो। अभी आप कौन सा भी अल्फाबेट डालो तो वो ओवेल बताएगा। ए डाला ओवेल है, बी डाला कॉन्सोनेंट है, यस। सी डाला कॉन्सोनेंट है, डी डाला कॉन्सोनेंट है, ई डाला तो ओवेल है, एफ डाला कॉन्सोनेंट है। समझ में आया कि कैसा लिखा है प्रोग्राम लॉजिक? हेलो। आई लिखा तो वो फिर से बोलेगा ओवेल, यस। हेलो। Yes, sir. इसमें खाली एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है वो सोचेंगे हम अभी, ठीक है। अगर कोई है ना, अगर कोई है ना ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल डालेगा तो हमारे लॉजिक के मुताबिक वो कॉन्सोनेंट है बोलेगा। इज इट राइट? पता नहीं है ना, स्पेशल सिंबल को कॉन्सोनेंट बोला जाता है कि नहीं वो पता नहीं हमको है ना, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग है। ए टू जेड ही, ए टू जेड जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स के लिए ही है, अल्फाबेट्स है तो ही हम ओवेल और कॉन्सोनेंट का थिंकिंग कर सकेंगे। यस, हेलो। अगर कोई डिजिट भी डालेगा तो कॉन्सोनेंट बोलेगा अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक। 5 डाला तो वो बोलेगा इट इज 5 इज कॉन्सोनेंट, विच इज रॉन्ग आई थिंक। 0 to 9 डिजिट्स रहते हैं, उसको हम कॉन्सोनेंट नहीं बोल सकते। कॉन्सोनेंट और वोवेल जो है वो खाली अल्फाबेट्स के लिए रहता है। मतलब ये जो पूरा कोड है, ये जो कोड है वो कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? जब कस्टमर कैरेक्टर का वैल्यू अल्फाबेट डालेगा तो ही होना चाहिए। यस, हेलो। तो इसको हम क्या करेंगे, बॉडी में डालेंगे, पूरे पूरे कोड को बॉडी में डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे है ना, इफ, देखो है ना, CH का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, मला वाटतं 97, यस सॉरी 65 कैपिटल ए के लिए, एंड CH का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 90 तक गया तो ये लॉजिकल कंडीशन कंप्लीट हुआ। किसके लिए? कैपिटल अल्फाबेट्स A to Z के लिए। यस, लो Yes, sir. विचार करा। आणि दुसरी अशीच कंडिशन स्मॉल लेटर साठी, CH ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 97 पासून चालू होऊन अँड CH का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 122। यस, Yes, sir. तो ये जो पूरा लॉजिकल कंडीशन है, ये पूरा लॉजिकल कंडीशन कैरेक्टर हमारा अल्फाबेट होने के लिए ही है। अगर वो अल्फाबेट रहेगा तो ही ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, नहीं तो हम यहाँ पे मैसेज दिखा के छोड़ देंगे। एल्स, सॉरी इधर लिखेंगे हम printf यू, क्या लिखेंगे देखो ना, सॉरी लिखेंगे, सॉरी मशीन इज नॉट एबल टू डिटरमाइन। printf देखो ना, कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं हम। मशीन कंप्यूटर इज नॉट एबल टू डिटरमाइन is it vowel or सांगा consonant? Why? What is the reason? Printf /n as you have not entered
अल्फाबेट अल्फाबेट आपने एंटर नहीं किया है बोल के वो इशू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई अभी देखो एक्सक्लेमेटरी डाला तो वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड वो उसमें नहीं आ रहा है, आस्की वैल्यूज में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ व्हिच डायरेक्टली वो एल्स में जाएगा लास्ट वाला। सॉरी कंप्यूटर इज नॉट एबल टू डिटरमाइन इज इट यूज करने का है तो करो, इज इट अ वोवेल और कॉन्सोनेंट एज यू हैव नॉट एंटर्ड अल्फाबेट। यस Yes, sir. विचार करा, जर कोणी डिजिट टाकलं तिकडे तर तो डायरेक्ट दाखवेल सॉरी कंप्यूटर इज नॉट एबल टू डिटरमाइन इज इट अ वोवेल और कॉन्सोनेंट एज यू हैव नॉट एंटर्ड ओके अल्फाबेट। अगर कोई अल्फाबेट एंटर करेगा तो ही जाके वो दिखाएगा क्यू, क्यू इज कॉन्सोनेंट। यस Yes, sir. फिर लिटिल बिट थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, आस्की वैल्यूज का उसका मीनिंग क्या है ऐसा लिखा तो भी चलेगा। इसको इक्विवेलेंट लॉजिकल कंडीशन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लॉजिकल कंडीशन लिख सकते हैं। अगर आस्की वैल्यूज आपको बाय हार्ट नहीं है तो आई कैन राइट सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, और यहाँ पे स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक। यस हेलो ऐसा लिखा तो भी चलेगा, सेम आउटपुट हमको मिलेगा क्यू कॉन्सोनेंट। यस हेलो तो ये जो लॉजिकल कंडीशन लिखा है, ये जो लॉजिकल कंडीशन है इट इज इक्विवेलेंट विद दिस लॉजिकल कंडीशन। समझ ला? यस Yes, sir. थँक यू। चला आहे ना जाऊया पुढे, लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट नंबर 2। मैंने डिवीजन बी को एक प्रोग्राम लिया था, खाली वो डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैंने भेजा है ना कि कहाँ पे हमारा जो प्रोग्रामिंग वाला पेज है प्रोग्राम वो शेयर किया है मैंने, खाली लॉजिक डिस्कस करके हम आगे जाएंगे और लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 एंड करने का एंड होगा। ठीक है एंड होगा। ठीक है व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो यस यस। Yes, sir. Yes, sir. कल एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डिवीजन बी के लिए लिया है हम, आपको अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा अलग डिस्कशन हुआ है हमारा, तो ऐसा प्रोग्राम लिखने का है, सोचो राइट, ये स्टेटमेंट रहेगा राइट ए सी प्रोग्राम टू determine calculate to calculate total amount where quantity and rate rate per item। ठीक है रेट पर आइटम जो है आर इनपुट्स ठीक है। और उसमें इफ क्वांटिटीज आर मोर देन 100 रहेगा देन डिस्काउंट ऑफ 10% will be given on total on amount म्हणूया आपण। यस हेलो इसका थिंकिंग करो, प्रोग्राम इज वेरी इजी बट लिटिल बिट थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, और इसका सॉल्यूशन भी दिया है। अगर आपको वो वीडियो मिलेगा डिवीजन बी की कोई फ्रेंड रहेगा तो उनसे ले लो, और वो प्रोग्राम का डिस्कशन करके हमने सॉल्व किया इसको। ठीक है इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। हमको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का है, क्वांटिटी एंड रेट वो जब हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो कभी कभी डिस्काउंट रहता है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटीज ले रहे हो तो डिस्काउंट दिया जाता है बराबर। हेलो 10%, 20%, 50% such kind of discount you will be getting, and if quantities are more than 100 then only discount हमको देने का है। अगर क्वांटिटी कोई कम लेता है 100 भी लेता है तो हमको डिस्काउंट नहीं देना, हमको डिस्काउंट नहीं दे सकते हम उसको। यस लो मोर देन 100 का मीनिंग क्या है? 100 के ऊपर है ना, क्वांटिटीज अगर 100 के ऊपर है तो ही 10% का डिस्काउंट और टोटल अमाउंट में थोड़ा सा बदलाव आएगा, कम उसको थोड़ा सा मुनाफा होगा है ना, किसको? कस्टमर को। यस सोचो आप इसका। तो ये भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लिया था हमने। अगर नहीं समझ में आया तो हम लेंगे, अगर समझ में आया तो छोड़ देंगे इसको। चलिए कहाँ पे जाएंगे हम वापस? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो यस यस
Yes, sir. 305.c fy। तो लास्ट वाला दो कॉन्सेप्ट है, अ सी प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट पहले सीखा है हमने। ब्रेक स्टेटमेंट किसमें? शायद स्विच केस में। यस, हेलो, याद नहीं है हम किसी को भी। void main opening curly bracket closing curly bracket clr scr get ch int crn। सबसे पहले हमने अभी नेस्टेड फॉर लूप सीखा है, उसका यूज करेंगे। और आई और जे है ना, टू लूपिंग वेरिएबल्स फॉर लिखा। आउटपुट क्या आएगा कोई तो बताओ है ना। फॉर प्रिंटर /n पैटर्न ही है, पैटर्न वाला है प्रोग्राम। कुछ वैल्यू चेंज किया है, 1 आई इज लेस देन और इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू 3 j प्लस प्लस। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ j वी आर डिस्प्लेइंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन। प्रिंटफ क्या आएगा बताओ? वैल्यू ऑफ j आई वांटेड टू डिस्प्ले %d, j। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा? हेलो, फटाफट, हेलो हेलो, विचार करा। पहिल्या रो मध्ये काय दिसेल? फर्स्ट रो में क्या दिखाई देगा? फास्ट 1 2 3 सर। हाँ, 1 2 3। वेरी गुड। सेकेंड रो में, सेकेंड रो में 1 2 3 सर। वेरी गुड। थर्ड रो में 1 2 वेरी गुड, वेरी गुड। समझला? अभी 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 ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया तो क्या होगा? लेट अस ट्राई टू थिंक। ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद है, इसके बाद इफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किया है और इसमें ब्रेक डाला और यहाँ पे बताया मशीन को आई और जे का वैल्यू जब सेम रहता है तब जाके ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है ना मशीन को। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है वो समझो और उसके बाद आउटपुट बताओ क्या आएगा। अभी आई और जे का वैल्यू जब सेम रहेगा तब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल जो है कंप्यूटर का वो इनर फॉर लूप, अभी ये ब्रेक स्टेटमेंट इनर फॉर लूप के अंदर है, वहां से वो बाहर निकलेगा। इनर फॉर लूप खत्म होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ इनर फॉर लूप वहां पे खत्म होगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा। जब जब है, जब जब, ठीक है, जब 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 है, जब जब आई एंड जे का वैल्यू सेम रहेगा तब तक ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब तक क्या होगा? इनर फॉर लूप का जो कंट्रोल हमारा इनर फॉर लूप में रहता था वो बाहर निकल के आउटर फॉर लूप के उधर जाएगा। अभी बताओ आउटपुट क्या आएगा? हेलो, थिंक करो। पहले रो में क्या आएगा? फास्ट। 1 वेरी गुड, वेरी गुड। पहले रो में 1 आएगा। दूसरे रो में वेरी वेरी गुड, आई एम हैप्पी बर का, बिकॉज डिवीजन दे कुड नॉट। दूसरे रो में, सेकंड रो 1 2 वेरी गुड एंड 1 2। थर्ड रो वेरी गुड, 1 2 वेरी गुड, वेरी गुड एंड आई एम हैप्पी एंड। इसका मतलब है आपको चैप्टर नंबर 2 है ना कंप्लीटली यू हैव अंडरस्टूड। जिसने भी आंसर दिया है ना एक्चुअली उनको पता चल गया। आणि जेचं व्हॅल्यू सेम असलं की ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर विल जंप आउट ऑफ दिस इनर फॉर लूप और वो आगे जाएगा बैकस्लैश के उधर, फिर इधर से इधर जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा। सेकंड रो है ना, आई का वैल्यू 2 मतलब सेकंड रो एंड सो ऑन। यस, तो ये ऐसा आउटपुट आ रहा है। समझ में आया ब्रेक स्टेटमेंट? लेट अस गो टू कंटिन्यू। Yes, sir. वेरी गुड देन।
आणि टाइम जर राहिला तर आपण ते प्रोग्राम घेऊया बरं का. मला वाटतं टाइम राहू शकेल बिकॉज यू आर अंडरस्टँडिंग अ लॉट. तो ब्रेक की जगह पे ओनली लिटिल बिट मॉडिफिकेशन आई विल बी डूइंग. ब्रेक इज कीवर्ड है ना. सिमिलरली कंटिन्यू इज ऑल्सो कीवर्ड. कंटिन्यू. खाली डिफरेंस क्या है वो समझो और उसके बाद आउटपुट क्या आएगा वो बताओ. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ. यहाँ से ये जो कोड है ये उठा के कंट्रोल इंसर्ट डिलीट कट किया और प्रिंटफ स्टेटमेंट के पहले पेस्ट किया. ठीक है. और यहाँ पे जाके ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिखा. कीवर्ड है, व्हाइट कलर मिलेगा आपको. अभी क्या होगा देखो एन. आई और जे का वैल्यू जब सेम रहता है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर विल जंप फ्रॉम कंटिन्यू टू अपडेशन ऑफ इनर फॉर लूप. क्योंकि कंटिन्यू जो है वो इनर फॉर लूप के अंदर है. तो इनर फॉर लूप का जो लूपिंग वेरिएबल है उसको अपडेट करने के लिए जाएगा वो. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. जब आई एंड जे का वैल्यू सेम रहेगा तब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर विल जंप डायरेक्टली टूवर्ड्स अपडेशन ऑफ लूपिंग वेरिएबल. अभी यहाँ पे कंटिन्यू इनर फॉर लूप में है, देयरफॉर अपडेशन ऑफ इनर फॉर लूप के वहां पे जाएगा, जे प्लस प्लस के वहां पे जाएगा. अभी बोलो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा. विचार करा है. पहले रो में क्या दिखाई देगा. हेलो. फर्स्ट रो 1 2 3 सर. 1 2 3 कैसे दिखाई देगा. नेक्स्ट. पहले रो में क्या दिखाई देगा. जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर विल जंप फ्रॉम कंटिन्यू टू अपडेशन ऑफ लूपिंग वेरिएबल जे प्लस प्लस. वहां पे जंप करेगा वो. बताओ पहले रो में क्या मिलेगा. हेलो. पहला रो बताओ. यहाँ से स्टार्ट करने का है आपको. 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 ट्रू. जे इज इक्वल टू 1 इज लेस देन और 3 1 कंटिन्यू ट्रू. जे का वैल्यू 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 फॉल्स. आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. जे का पहला वैल्यू क्या दिखाई देगा फर्स्ट रो में. मैं बताता हूँ. हमारे पास टाइम कम है. ठीक है. आप सोचो सुनो है ना. आई का वैल्यू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू. यहाँ पे जाएगा. जे का वैल्यू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू फॉर इनर फॉर लूप. आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू. कंटिन्यू स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. कंटिन्यू स्टेटमेंट वंस कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर विल जंप फ्रॉम कंटिन्यू स्टेटमेंट टू जे प्लस प्लस. वैल्यू ऑफ जे विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. इट विल बिकम 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू फॉर इनर फॉर लूप फॉर सेकंड टाइम. आई का वैल्यू अभी भी 1 है, जे का वैल्यू 2 है. लॉजिकल कंडीशन जो ये है इफ का वो फॉल्स रहेगा. फॉल्स रहेगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ये मशीन का कंट्रोल जो है यहाँ पे जाएगा. इनर फॉर लूप का जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे जाएगा. जे का पहला वैल्यू आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 2 दिखाई देगा. यस. पहले रो में आउटपुट स्क्रीन के ऊपर पहले रो में जे का वैल्यू 2 दिखाई देगा. दो वैल्यू दिखाने के बाद जे का वैल्यू फिर से एक बार 1 से बढ़ेगा. जे का वैल्यू 3 होगा. 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स टू. आई का वैल्यू अभी भी 1 है. 1 इज इक्वल टू 3 लॉजिकल कंडीशन विल बिकम फॉल्स. कंटिन्यू स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. वैल्यू ऑफ जे विल बी डिस्प्लेड इन द सेम रो. वो 3 दिखाएगा. पहले रो में 2 और 3 दिखाई देगा. हेलो. यस सर. फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा. जे का वैल्यू फिर से एक से बढ़ेगा है ना. जे का वैल्यू 4 होगा. 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 फॉल्स होगा. एग्जीक्यूशन ऑफ इनर फॉर लूप यहाँ पे स्टॉप होगा. मशीन जो है यहाँ पे जाएगा मतलब सेकेंड रो में जाएगा. यहाँ से फिर यहाँ जाएगा. आई का वैल्यू 1 से बढ़ेगा मतलब वी आर इन सेकेंड रो. आई का वैल्यू 2 मतलब वी आर इन सेकेंड रो. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 लॉजिकल कंडीशन रिमेन्स ट्रू फॉर सेकेंड टाइम फॉर आउटर फॉर लूप. यहाँ से वो यहाँ जाएगा. जे का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगा 1.
1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, लॉजिकल कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे आएगा i का वैल्यू अब 2 है, j का वैल्यू 1 है। i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 1 है, लॉजिकल कंडीशन फॉल्स होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। j के यहाँ पे जाएगा, j का पहला वैल्यू दूसरे रो में 1 दिखाएगा। हेलो, यस सर। यहाँ से वो यहाँ जाएगा, j का वैल्यू 2 होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, लॉजिकल कंडीशन ट्रू। i का भी वैल्यू 2 है, j का भी वैल्यू 2 है, 2 इज इक्वल टू 2, ट्रू होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ से वो यहाँ जंप करेगा, डायरेक्ट वो j का वैल्यू एक से इंक्रीज करेगा, j का वैल्यू जो है वो 3 मिलेगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, लॉजिकल कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ आएगा, i का वैल्यू अभी अब 2 है, j का वैल्यू जो है वो 3 है, लॉजिकल कंडीशन फॉल्स होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। j का वैल्यू सेकंड रो में सेकंड वैल्यू 3 दिखाएगा, मतलब सेकंड रो में हमको 1 3 दिखाई देगा। जब जब i एंड j का वैल्यू सेम रहेगा, इतना इजी है, i एंड j का वैल्यू सेम रहेगा तो हमको आउटपुट वो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब j का वो वैल्यू मिस होगा। यहाँ पे जब i एंड j का वैल्यू सेम रहता है, वो j का वैल्यू दिखाएगा नहीं, मतलब पहला रो रहेगा तो उसमें 1 नहीं दिखाएगा, क्योंकि i एंड j का वैल्यू फर्स्ट रो में सेम रहता है। 2 एंड 3 दिखाएगा, सेकेंड रो में वो क्या दिखाएगा, 1 एंड 3 दिखाएगा। सिमिलरली थर्ड रो में क्या दिखाएगा, वो 1 एंड 2 दिखाएगा, क्योंकि थर्ड रो में i का वैल्यू और j का वैल्यू 3 3 होता है। सोचो आप, है यस। हेलो, यस सर। समझ लगा है बहन? थोड़ा सा अलग प्रोग्राम लेंगे हम, थोड़ा सा वैरायटी आपको ज्यादा मिलने के लिए, ठीक है। हमारे पास अभी कितना टाइम है देखो, है ना, 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली वी हैव। सेव एज 106.c, डिलीट, कंटिन्यू। समझ लगा बघा, विचार करा। ऑल प्रोग्राम्स you will get it, okay, in our notes section. A C program to determine triangle is valid or not, where 3 sides of the triangle are inputs. पता है क्या आपको ये लॉजिक? डिवीजन बी को कुछ तो अलग प्रोग्राम लिया था मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए एक्चुअली। ये एक था ये, उसके बाद ट्रायंगल वैलिड वाला एक प्रोग्राम लिया था, उसमें 3 एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल्स वो इनपुट रहेगा, है 3 एंगल्स। तो मतलब एक एग्जांपल के लिए ना, 30 60 और 90, तो वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। क्यों? हेलो, 180 आएगा समय से। क्योंकि हर एक एंगल का समेशन जो है वो 180 आता है। तो ये वाला प्रोग्राम डिवीजन बी को लिया था, तो हम थोड़ा सा अलग प्रोग्राम ले रहे हैं, जहाँ पे 3 साइड्स, नॉट एंगल्स, 3 साइड्स जो है वो इनपुट रहेगा, और मशीन हमको बताएगा कि वो ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं। तो उसका लॉजिक पता है क्या आपको? जैसे यहाँ पे 180 है ना, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स अगर 180 रहता है एंगल का, तो वो एंगल जो है वो ट्रायंगल मतलब आएगा। 180 समेशन आया, हर एक एंगल का समेशन किया हमने, तो अगर उसका समेशन 180 आता है तो वो ट्रायंगल वैलिड रहता है। तो उसमें भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है रॉन्ग वाला। ऐसा अगर किसी ने डाला है ना, पहला एंगल 180, दूसरा एंगल 0 एंड तीसरा एंगल भी 0, तो यहाँ पे वो ट्रायंगल नहीं होता है। यस, समेशन ये 180 आया, खाली समेशन 180 आने के बाद ट्रायंगल वैलिड रहता है नहीं रहता है, वो गलत है लॉजिक। मतलब उसमें और एक लॉजिक है कि दो जो रिमेनिंग एंगल्स है ना ट्रायंगल के, कोई भी एंगल जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यस, कोई तो ऐसा लिखेगा 90 90 0, तो ये भी ट्रायंगल नहीं होगा। हेलो, थिंक करो, है यस सर। ये 0 वाला एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। और दूसरा जो है, अगर किसी ने ऐसा लिखा है 1 -1 1 180,
तो भी शायद एंगल पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। हम 1 - 1 एंगल लेके फिर +1 एंगल लेके फिर 180 एंगल लेके हम ट्रायंगल निकाल नहीं सकते शायद। देखो आप सोचो, पता नहीं मेरे को ज्यादा ग्राफिक्स। हेलो, यस। तो मतलब हमारा जो एंगल्स जो है उसमें से हर एक एंगल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो हर एक एंगल जो है वो निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होने के बाद भी शायद हम ट्रायंगल निकाल सकते, पता नहीं मेरे को। यस, हेलो। तो ये भी प्रोग्राम उनको लिया है। हम जो प्रोग्राम लेने वाले हैं जहाँ पे 3 साइड जो है वो इनपुट रहेगा, तो ये लॉजिक पता है क्या आपको? ट्रायंगल का लॉजिक पता है क्या? जब 3 साइड्स इनपुट रहते, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, ये पहला साइड है ट्रायंगल का। हम ट्रायंगल निकालेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा गलत गलत है, साइज पता नहीं। ये 1 है तो ये 2 रहेगा क्या? आप समझ लो, है ना, ये 1 2 3 ऐसा है। ओके, तो ये ट्रायंगल का साइड है, मतलब ये 1 यूनिट रहेगा। 1 सेंटीमीटर रहेगा तो ये 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये 3 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ऐसा कुछ इनपुट है तो वो ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना, प्रैक्टिकली। तो लॉजिक क्या है? दो साइड्स का समेशन जो है वो तीसरे साइड से ज्यादा रहना चाहिए। यस, ये लॉजिक है एक्चुअली। अगर ये हुआ तो ही वो ट्रायंगल वैलिड रहता है। तो लॉजिक मैंने बताया है, दो साइड का समेशन जो है वो तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो शायद यहाँ पे नहीं आ रहा है वो। देखो आप, 1 + 2 जो है वो 3 से ज्यादा नहीं है, एक्चुअली 3 हो रहा है। तो आप कागज के ऊपर ट्राई करो, है ना, 1 सेंटीमीटर का लाइन निकालने का, फिर 2 सेंटीमीटर का लाइन निकालने का, फिर 3 सेंटीमीटर का लाइन निकालने का। तो ऐसा कुछ तो आएगा, पता नहीं कैसा आएगा। हेलो, यू कैन ट्राई इट। पता नहीं कैसा आएगा, मेरे को पता नहीं है कैसा आएगा, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं होगा वैलिड। ये साइड्स अगर रहेगा 1 2 3, बरोबर। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, थोड़ा सा इजी वाला। ऐसा कुछ तो 3 3 और 2। अभी ये रहेगा क्या? हेलो, देखो, है, इन दोनों का समेशन करो, कितना आ रहा है? हेलो, 5 आ रहा है ना, 5 जो बड़ा है ना 3 से। तो ये पहली पॉसिबिलिटी हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इन दोनों का समेशन करो, तीसरे साइड से ज्यादा आ रहा है। यस, अभी ये दो सेम है, इसका समेशन किया तो भी सेम ही आएगा। मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है, ये ट्रायंगल पॉसिबल है। दो दो यूनिट लेके 3 3 यूनिट लेने का, ऐसा कुछ तो आइसोसेलेस बोलते हैं शायद इसको, समद्विभुज ट्रायंगल। यस, हेलो, पता नहीं। समझ लगा लॉजिक क्या है? समझ में आया ट्रायंगल कब होगा? और एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो, है ना, एक 10 सेंटीमीटर लिया, फिर 1 सेंटीमीटर लिया, फिर 1 सेंटीमीटर लिया, होगा क्या ट्रायंगल? हेलो, विचार करा की तिकडे. 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. तुम्ही म्हणणार आयसोसेलेस ट्रायंगल आहे, शक्यच नाही, ते ट्रायंगल होऊच नाही शकत, एकमेकांना मिळणारच नाहीत ते कुठे लाईन्स. ह्याचं लॉजिक काय आहे पाठीमागे? 1 1 10, इन दोनों का समेशन करो तो ये इससे ज्यादा होना चाहिए, हो रहा है. यस, अभी पॉसिबिलिटी दूसरा, इन दोनों का समेशन करो है, इससे ज्यादा हो रहा है क्या? 10 से ज्यादा समेशन. हेलो, नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट वैलिड ट्रायंगल. तो अभी हमारे पास खाली कितना मिनट्स है? बहुत कम मिनट्स है. इमीडिएटली आई विल बी राइटिंग दिस प्रोग्राम एंड वी विल स्टॉप हियर. यूनिट नंबर 2 इज एंडेड, है ना, सक्सेसफुल ऐसा बोलेंगे हम. F2 300.c बहुत सारा प्रैक्टिस प्रोग्राम्स लिया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आपको समझ में आए ये सब्जेक्ट. इतना कोई लेगा नहीं, ठीक है. सी प्रोग्राम टू डिटरमाइन स्क्रीन नहीं है सर आप. हाँ, स्क्रीन नहीं Screen दिखाई. ओके, अभी अभी यस, सी यस, यस सर. program to determine triangle is valid or not where 3 sides of the
ट्रायंगल आर इनपुट्स, तीन साइड जो ट्रायंगल का रहता है वो इनपुट्स रहेगा। ट्रायंगल वैलिड होता है मतलब हम निकाल सकते हैं उस ट्रायंगल को कागज और कागज के ऊपर है ना, वो मतलब वैलिड है तो ही निकाल सकते हैं, वैलिड नहीं तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करो है ना, हैश इंक्लूड एज यूजुअल। CLR SCR to clear the previous output screen, gets it to hold the output screen in थ्री साइड्स। मेरा ABC है, कुछ प्रॉब्लम, इंटीजर लिया है मैंने। लो यस, प्रिंट है, आप ऐसा लिख सकते हो, प्लीज एंटर साइड AB। हाउ यू विल एंटर साइड AB थ्रू कीबोर्ड स्कैनर। साइड AB जो है उसका लेंथ A है, ऐसा समझो है ना, %D कॉमा एम्परसाइन A। AB लिखा तो भी चलेगा है ना, AB BC एंड AC और CA। यस, हेलो हेलो, कुछ भी ले लो है ना, AB के लिए AB लेंगे, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, तीन साइड रहते हैं ट्रायंगल के लिए तो तीन इनपुट रहेगा। प्लीज एंटर साइड BC, तो यहाँ पे BC लिखेंगे। प्लीज एंटर साइड AC और CA, AC और CA। इस सेंसिटिविटी का इशू आना नहीं चाहिए। ठीक है, बोलो अभी, हेलो, छोटा सा कंडीशन लिख के, अगर कंडीशन ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ तो प्रिंट है ट्रायंगल इज नॉट वैलिड और इनवैलिड। ट्रायंगल इज इनवैलिड और ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, मीनिंग इज सेम। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल इज वैलिड। यस, अभी लॉजिकल कंडीशन कौन बताएगा, फटाफट फटाफट। क्लियर, हमको तीन पॉसिबिलिटी चेक करने का है। AB और BC का समेशन जो है वो CA से ज्यादा होना चाहिए। यस, हेलो, पहले दो साइड का समेशन तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, ये पहली पॉसिबिलिटी। और और आता है या एंड आता है, एंड आएगा शायद। तीनों भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, BC और CA इन दोनों का समेशन जो है वो AB से ज्यादा आना चाहिए। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, AB एंड CA का समेशन जो है वो BC से ज्यादा आना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस अगर ट्रू रहता है तो ही ट्रायंगल वैलिड। यस, हेलो, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA। यस, तो इसको पहला कंडीशन, पहले दो साइड का समेशन तीसरे साइड से ज्यादा है तो वैलिड रहता है। और बताओ अभी, BC प्लस CA ग्रेटर देन AB। Yes, sir. इसको भी ब्रैकेट डालो है, ये दोनों का समेशन होना चाहिए सबसे पहले। एसोसिएटिविटी इशू आना नहीं चाहिए। कितना हुआ ब्रैकेट्स पता नहीं, गलत गलत हुआ कुछ तो पहले तीन कंडीशंस है, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। पहले इसमें AB और BC का समेशन जो है वो CA से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा वाला संगा BC और CA का AB से ज्यादा होना चाहिए। यस, हेलो, अभी AB और CA का समेशन जो है वो BC से ज्यादा होना चाहिए। यस, इज इट राइट, कंप्लायंट। अभी देखो हमने जो एग्जांपल लिया था 1, 1 एंड 10, तो वो बोलेगा ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, ट्रायंगल इज वैलिड। अरे अरे, कुछ तो गलत हुआ है।
लॉजिकल और यूज किया एंड लॉजिकल कंडीशन। लॉजिकल और यूज किया है तो चलेगा नहीं, वो सब कंडीशंस ट्रू होना चाहिए तब जाके वो वैलिड रहेगा। लॉजिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आई मेड मिस्टेक। तीनों कंडीशन अगर ट्रू रहता है तब ही जाके वो ट्रायंगल इज वैलिड। अभी शायद करेक्ट आएगा। यस, ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। हेलो, Yes, sir. वैलिड होना रहा बर का एक एक एक, इज इट वैलिड? इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। यस, Yes, sir. ये वैलिड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वैलिड रहता है। आइसोसेलेस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा शायद। हर एक, देखो अभी हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो वैलिड रहेगा, लेकिन आइसोसेलेस के लिए ऐसा हम कह नहीं सकते। उसका बेस्ट एग्जांपल है 1 1 10। यस, लेकिन हर एक इक्विलैटरल जो है ना 3 3 3 तो ऑलवेज वैलिड रहेगा। यस, समजलं का? Yes. अजून एखादं एक्झाम्पल जिकडे व्हॅलिड होऊ नाही शकणार असं काही आहे का तुमच्या डोक्यात? आपण चेक करू जिकडे ट्रायंगल काढू नाही शकणार। वी मतलब वो वैलिड ट्रायंगल नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, अगर किसी ने 0 0 0 डाला तो क्या होगा? वैलिड नहीं है, बराबर, ठीक है। 6 0 1 ट्रायंगल इज नॉट वैलिड आ रहा है अपने आप। 0 1 0 शायद आता है, पता नहीं। देखो अगर आया तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया जीरो से मतलब 0 0 डाल के भी अगर वो आ रहा है तो गलत रहेगा। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या 1 1 10 जैसा जहाँ पे इनवैलिड आएगा? हेलो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर एंड वी हैव 3 मिनट्स। लॉजिकल एंड क्यों आ रहा है समझ लगा? लॉजिकल एंड क्यों? हेलो, तीनों का तीनों पॉसिबिलिटीज ट्रू हुआ तो ही वैलिड रहेगा ट्रायंगल। यस, इसलिए लॉजिकल एंड। लॉजिकल और किया तो लॉजिक गलत होगा। समझ लगा? Yes, sir. कुछ डाउट इशू? यहाँ पे कोई निगेटिव भी डाल सकता है, पता नहीं। निगेटिव डालने का हमने थिंकिंग नहीं किया है। -4 -4 -4 तो लेंथ जो है, देखो है ना, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं रहता है। यस, लो, लेंथ मोजतो आपण, लेंथ मोजतो, ती मोजलेली लेंथ ही कधीच निगेटिव्ह नसते। यस, प्रैक्टिकली निगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं रहता है। हेलो, हाँ, अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन का सोच रहे हो, पता नहीं डायरेक्शन, तब जाके निगेटिव डायरेक्शन, वो मतलब नॉर्थ के साइड पे जा रहे हो, साउथ के साइड पे जा रहे हो, कोई सिविल का बंदा रहेगा तो वो थोड़ा सा थिंक करेगा निगेटिव डायरेक्शन। यस, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, विचार करायचा। थांबूया इकडे, लेट अस स्टॉप हियर। Thank you very much for attending this session. I hope you have understood unit number 2, and in unit number 2 let us have a revision within 2 minutes. Unit number 2 we started with different types of statements in C. C में दो types के statements हैं actually. Broadly if you will classify into two, there will be two categories. Number 1 sequential type of statements and number 2 control statements. Sequential type of statements वो हमने सिंपल प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स विल बी राइटिंग, ऑल स्टेटमेंट्स मशीन विल बी एग्जीक्यूटिंग, वी आर कॉलिंग देम एज sequential. According to sequence it will be executed. In case of control statements we can further classify into two categories, decision control statement and looping control statement. Decision control statement में क्या रहता है कि एक ही बार वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए लॉजिकल कंडीशन चेक किया जाएगा और वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। Decision control statements are executed only for one time. Logical condition true हो या logical condition false हो, वो एक ही बार execute होता है। In case of looping control statement, if logical condition remains true, body of looping control statement gets executed again and again. That is the difference between looping control statement and decision control statement. Once
लॉजिकल कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब जाके एग्जीक्यूशन जो है बॉडी का वो स्टॉप होता है। यस, हेलो। और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने इफ सीखा, इफ एल सीखा, एल्स इफ लैडर सीखा, नेस्टेड इफ एल सीखा, स्विच केस सीखा। सो ऑल दीज आर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने खाली फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, फॉर और व्हाइल में डिफरेंस देखा। एंट्री कंट्रोल, लूपिंग एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट, एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो भी सीखा। नेस्टेड फॉर लूप, different types of patterns, how to display, and some practice programs. In this way, unit number 2 we have finished. Yes. Thank you very much for attending this session. Bye.